Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. So first of all, I will be explaining the overall approach for economics optional as well as for the economic service. Those who are pursuing for economic service as well as for civil service exam. So initial half an hour, you can say 40-45 minutes, that will be for orientation, and after that we'll be starting with the content. Clear? So everything that I'm going to write here, just copy it properly. So starting with the content part first. So this initial part is basically for this economics optional content. So write down first of all the content, overall approach, what we will be providing to you, what we are expecting from you, how to study, that means overall approach, from where to study that. तो different जो courses होंगे, अलग अलग जो sources हैं, I will be explaining all. So first of all, the content part. Now in this content part, just go by the syllabus what is available on website for economics optional syllabus on UPSC website. First topic is basically advanced microeconomics. Within that advanced micro, it is a Marshallian and valuation approach, then alternative theories of distribution, after that market structure, and then modern welfare criteria. Now problem with this type of syllabus mention is that जो content आप देख रहे हैं वो वहाँ से तो question रहेंगे, but there are something which are not mentioned here, so those you can say are outside. So the purpose of class will be basically to draw that outer boundary, which means जो content आपको syllabus में है वो cover करना है, plus जो mention नहीं है वो भी आपको cover करना है. बट आपको ये पता कैसे जज कैसे करोगे कि कौन सा पार्ट मेंशन नहीं है वो क्वेश्चन आ रहा है. फॉर दैट पर्पस जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है यू हैव टू रेफर फ्रॉम दैट. जो अभी लास्ट 20-25 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वहाँ से वो आइडिया लग जाता है कि ओके दीज क्वेश्चंस आर कमिंग रेगुलरली बट दीज टॉपिक्स आर नॉट मेंशन्ड इन दी सिलेबस बट दे आर कमिंग रेगुलरली इन दी एग्जामिनेशन. सो योर फर्स्ट टॉपिक विल बी बेसिकली एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो पैरेलल यू कैन नोट इट डाउन. Content for paper 1. First topic will be advanced micro, and within advanced micro there are 4 parts, not necessary to mention all. Then the second topic will be advanced macro. Advanced macroeconomics. Now in the advanced macro section, again the syllabus is approaches to employment, income and interest rate determination, classical and Keynesian, that is ISLM and classical, neoclassical synthesis, neoclassical, theory of interest rate determination and interest rate structure. That's it, without mentioning inflation, unemployment, Phillips curve, Okun's law, but उसके क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं. तो यहाँ भी आपको बेसिकली वही काम करना जो माइक्रो के अंदर किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो द टॉपिक मेंशन दैट मीन्स क्लासिकल एंड Keynesian, एंड देन वी विल कवर द अदर टॉपिक, वी कैन से द एक्स्ट्रा टॉपिक, बट एक्स्ट्रा डज नॉट मीन कि वो ओकेजनली आता है, वो रेगुलरली क्वेश्चन है. सो सेकेंड पार्ट विल बी द एडवांस मैक्रो. देन थर्ड इज मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस. जस्ट ये आप अपने नोटबुक में लिखते जाना फर्स्ट पेज पे. Third will be money, banking and finance. Money, banking and finance. This money, banking and finance section, you can divide it basically into 2 parts. One will be the related to the banking part, and the other is mainly the public finance part. So in the money part, it is demand and supply of money, money multiplier, quantity theory of money, Fisher approach, Pigou approach, Friedman approach, Keynes theory of demand for money. But most of these topic we will cover in the macro section. Macro section के अंदर because we have to cover Keynesian,
तो केनिशियन डिमांड फॉर मनी का कंसेप्ट वहाँ हो जाएगा। क्लासिकल है तो क्लासिकल थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी भी वहाँ हो जाएगा। तो देयर आर समथिंग यू कैन से ओवरलैपिंग पार्ट है। तो कुछ टॉपिक जो मनी वाले सेक्शन के होंगे वो मैक्रो के अंदर इंक्लूडेड होंगे। पब्लिक फाइनेंस वी कैन से एक्सक्लूसिवली है। So third topic is basically money, banking and finance. That means this first part is all about monetary management, monetary policy, and the second part is basically the fiscal policy. ये monetary policy हो गया और ये fiscal policy related topics हो जाएंगे. Usually micro, macro, money and banking, this is your section A, paper 1 section A, and section B is mainly international economics and growth and development. So your fourth topic will be international economics. International economics. This international economics you can divide it basically into two parts. One part will be all theories of trade, and the second section is a balance of payment and foreign exchange market. Theories of trade and balance of payment and foreign exchange market. The approach of first section, that is theories, will be micro, and the approach of second section, that is BOP, will be macro. That means international trade के दो approach है, micro और macro, which means before studying this theories of trade you should be familiar with the micro concept, and before studying that BOP and foreign exchange market you should be familiar with the मैक्रो कंसेप्ट. ठीक है, वो बेस होगा आपका. तो थियरीज ऑफ ट्रेड डिवाइडेड इनटू बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड थियरीज इंटरनेशनल इनफैक्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. तो सिलेबस सेज ओल्ड एंड न्यू थियरीज ऑफ ट्रेड, comparative advantage, without naming all the models, but remember there are many models here. Heberler model, Ricardian model, Heckscher-Ohlin model, specific factor model, standard trade model, then new trade theories of growth, terms of trade, offer curve, product cycle, static theories. Then this C part, from here you start balance of payment, alternative approaches. So this is your first section. तो जो फर्स्ट सेक्शन होगा इसका अप्रोच माइक्रो होगा. सेकेंड पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम बीओपी ऑनवर्ड्स, दिस विल बी बेसिकली द मैक्रो अप्रोच. Reference book for international will also be different. For theories I will suggest Paul Krugman, and for balance of payment onwards it will be better to read from Salvatore. अगर आप Salvatore ही completely rely करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. Usually you can most of the students have Dominic Salvatore. तो Salvatore के बुक से ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं. बट रिसेंटली देर आर सम क्वेश्चन जो पॉल क्रूगमैन से आप बेटर एक्सप्लेन कर पाते हो. लाइक स्पेकुलेटिव अटैक का एक सेक्शन है, ये टॉपिक है, या इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड और इंटर इंडस्ट्री ट्रेड का डिफरेंस है. सो जस्ट रिमेंबर देर आर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. एंड द फाइनल सेक्शन इन पेपर 1 इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Growth and development. Growth and development. This growth and development, again you can divide it basically again into two parts. One will be the all models. So all models means again the problem with syllabus is that it states theories of growth, Harrod's model, Lewis model, बैलेंस अनबैलेंस, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, बट देर आर वेरियस मॉडल्स इन द ग्रोथ सेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम हैरोड मॉडल, डोमर मॉडल, लुइस मॉडल, हैरिस टोडारो मॉडल, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थियरी गिवन बाय लेविंस्टीन, फिर लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल, टू गैप मॉडल. ऑल दोज मॉडल्स आर नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो आप रेफर करेंगे तो अराउंड वी फाइंड 10 to 15 different models यहाँ पे. So that will be basically one section. And after that economic development and international trade, economic development and planning, indicators of growth like human development. तो human development के index है, उसके अलग अलग जो भी recent indicator है, like gender empowerment measure हो गया, inequality adjusted AGI हो गया. तो वो क्वेश्चन अब आते हैं बेसिकली. कन्वेंशनल क्वेश्चन मतलब लास्ट
7-8 ईयर्स बैक अगर आप देखोगे तो होगा, रिसेंटली जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी लाइव क्वेश्चन है. सो दिस विल एंड दिस फाइनल पार्ट विल बी बेसिकली द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स. ठीक है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का सेक्शन होगा. नाउ the approach for study will be, suppose for example when we start with the first, that is micro, it is not that we will be completing entire micro and then we will go to macro. We will take the most important topic within micro, like market structure. So markets, but on what basis I am saying it is most important topic? Based upon the past year question, you find many questions from the market structure. Marshall valuation, there will be occasionally there will be a question, may or may not be a question. From welfare economics again there are regularly question but one or two. But from market structure you always find more than 3 parts. 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी है. तो in the first lot, let us say we start with the market structure, so around 10-11 lecture will be there. Then we will move to from micro to macro, covering the classical and Keynesian. Again it will take around 10 or 11 lecture. Then we return back to again micro, covering let us say welfare economics. Again we return back to macro for the remaining part. Again we go to the micro and then complete entire micro. And then we will proceed to the money, banking and finance. Then we go to the international, but I said international divided into 2 parts. So the first initial lot, that is 10-11 lecture, will be for theories. After that we will complete initial part of the growth and development, all models. Then we return back to again international, covering the balance of payment section. Again we return back to the growth and development and covering the remaining part. ठीक है, तो अलग अलग मतलब that means you can say the lecture will be in a lot of around 10 to 11 for one particular topic. ठीक है, one particular topic को आपको complete कर लेना है. It is not that entire micro, entire macro or international and then entire growth and development. And when I say you have to complete it in a sense, for example I said we start with the market structure, so you must know from where to read. So for market structure topic it will be better to refer Kotsianis. You don't have to read the entire book, you have to read chapter 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 13, just 6 chapters. वो आपके टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में मेंशन होगा. रेफरिंग टू दोज चैप्टर्स आई विल बी टेकिंग लेक्चर, वो आपके क्लास नोट्स में आ जाएगा. दैट मीन्स अगर आप उस बुक को आप रेफर नहीं कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है, बिकॉज जो बुक का कंटेंट है वो आपके नोटबुक में आ गया. फ्रॉम दैट नोटबुक यू हैव टू प्रिपेयर आंसर. दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग आंसर डायरेक्टली फ्रॉम द बुक. इन दैट सेंस बुक के सेंटेंस पैराग्राफ आपने नोटबुक में लिखे, उसी नोटबुक से आपने क्या बनाया, आंसर बनाया. दैट मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर राइटिंग इन द सेम लैंग्वेज. मतलब कोट्सानिस में जैसा लिखा है वैसे लिखना है. ये नहीं कि आप आइडिया कोट्सानिस का लेंगे और लैंग्वेज अपना डालोगे. ना तो मैं डालूंगा ना ही आप डालोगे. लैंग्वेज भी बेसिकली बुक का होगा, बिकॉज वो प्रेफर्ड है. इफ यू राइट इन दैट मैनर यू विल गेट मोर मार्क्स. इफ यू राइट इन योर ओन वर्ड्स इन पेपर 1, मार्क्स तो मिलेगा बट उतने नहीं मिलेगा जिससे सिलेक्शन होता है. ठीक है, मतलब आउट ऑफ 10 इफ यू आर गेटिंग लेट अस से 4 और 4.5, वो नंबर आपके काम का नहीं आया. आपने गलत नहीं लिखा था, सही लिखा है, बट आपने ओन वर्ड्स में लिखा उसको. बट इफ यू आर राइटिंग द सेम थिंग फ्रॉम द कोर बुक, देन यू लेट अस से अराउंड 5.5 और 6 और 6.5. वो जो 6.5 का नंबर होता है, 60% का नंबर, वो काफ़ी अच्छे नंबर हो गए. ठीक है, और एनी मार्क्स लेस देन 50%, उससे आप बाहर हो रहे. एनी स्कोर इन एक्सेस ऑफ 50% यू आर इन. ठीक है, मतलब 250 प्लस अराउंड 250 260 है, यू विल बी गेटिंग इंटरव्यू कॉल, प्रोवाइडेड आपका जनरल स्टडीज उसी प्रोपोर्शन में हो. एनी स्कोर इन एक्सेस ऑफ 275 विल बी कंसीडर्ड वेरी गुड. इन एक्सेस ऑफ 300 इज एक्सेप्शनल. ठीक है, 60% प्लस अगर आ गया एक्सेप्शन हो गया. आज की डेट में ये है. लास्ट 4 ईयर्स से बेसिकली ये पैटर्न है. 2018 and before that there were many students who were scoring more than 300, and it is not specifically with the economics optional, it is across, because there was a perception कि जनरल स्टडीज में मार्क्स कम आता है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अंदर ही आपको स्कोर करने हैं तो सिलेक्शन होगा. उस परसेप्शन को यूपीएससी डेलिबरेटली ब्रेक कर रहा है. दैट मीन्स अब ऑप्शनल में आपके लिए
डिफिकल्ट हो गया और जनरल स्टडीज में रिलेटिवली इजी होता है. तो एनी स्कोर इन एक्सेस ऑफ 275 विल बी कंसीडर्ड एज वेरी गुड स्कोर. क्लियर. बट टू स्कोर दैट आपको एग्जैक्ट लिखना होगा. एग्जैक्ट का मतलब है क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं है. अभी मैं आई विल बी शोइंग दोज क्वेश्चन. तो कमिंग बैक टू दैट स्ट्रेटजी पार्ट, फर्स्ट सपोज व्हेन वी स्टडी मार्केट स्ट्रक्चर, देन यू हैव टू कवर द, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको साइट पे मिल जाएंगे. ठीक है. और ये ओपन है हर स्टूडेंट के लिए. ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप इसको एक जगह डाउनलोड करके सेव कर लेना. लाइक जो लास्ट संडे एग्जाम हुआ वहां तक के क्वेश्चन आप इंक्लूडेड है इसमें. तो फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर द क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन चैम्बरलिन कंसेप्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. चैम्बरलिन का कंसेप्ट एक्सेस कैपेसिटी का ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. तो क्वेश्चन तो सबको मालूम है, आंसर भी सबको मालूम है, बट सबको उतने नंबर. अब नंबर लाने के लिए क्या करना था, वो एग्जैक्टनेस चाहिए. यहाँ पे जो आपने नोटबुक में लिखा है, इफ यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट, बट यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट ओनली व्हेन यू हैव रिटन दैट आंसर 2 or 3 टाइम्स अर्लियर. अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और ये लगता है कि अच्छा मुझे समझ में तो आ ही गया, एग्जामिनेशन में लिख देंगे, बट जब आप सिर्फ पढ़ रहे हो और एग्जामिनेशन में लिखोगे तो फिर अपने वर्ड्स डाल दोगे. आइडिया तो आपको याद रह जाएगा, वर्ड्स आपके आ जाएंगे, फिर उसको अवॉइड करना है. तो अवॉइड करने का मतलब है बिफोर राइटिंग योर फाइनल एग्जाम यू मस्ट राइट वन आंसर 2 or 3 टाइम्स बिफोर, सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न इट एंड यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन द सेम मैनर. वो एक्सपेक्टेड है. इफ यू वांट टू स्कोर मोर इन पेपर 1, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. सो वन क्वेश्चन वाज बेसिकली दिस. अदर क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा. इसे न्यूमेरिकल भी सेम है इनफैक्ट जो अभी इस साल है. जैसे जो न्यूमेरिकल फंक्शन है वैल्यू डिफरेंट है, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू डिफरेंट है और डिमांड फंक्शन की डिफरेंट है. बड़ी इजी क्वेश्चन है, ये अभी सॉल्व हो जाएगा. सो इन 2022 you find basically 3 question. In 21 again you find but point is this question was from monopolistic competition, this question was from oligopoly, other question is also from oligopoly. In 21 this question coordinate model, again oligopoly. King demand curve, again oligopoly. Conjectural variation, give some example of oligopoly, again oligopoly. तो अगर आप लास्ट 2-3 ईयर का क्वेश्चन देखेंगे यू विल फील दैट देयर इज अ बायसनेस टुवर्ड्स ओलिगोपोली क्वेश्चन. विद इन माइक्रो भी मार्केट सेक्टर में भी बायसनेस है कि ओलिगोपोली के क्वेश्चन ज़्यादा है. इन 2020 देन व्हेन यू गो बैक इन लेट अस से इन 2019 यू फाइंड वन क्वेश्चन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, अंडर competition. Then this question is from monopoly, this question is from oligopoly, this question is from market failure, and this question is again excess capacity. In a different language it has been asked, but you find 1 question, 2 question, 3 question, 4 question, 5 question. 5 question का मतलब हो गया approximately some question will be of 10 marks, some question will be of 15, some question will be of 20. So 5 question, that means around 60 plus number के question at least 60-70 marks only from मार्केट स्ट्रक्चर, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन. तो ये लास्ट 25 ईयर में जितने भी क्वेश्चन है वो एक जगह अरेंज किए गए हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू वंस यू विल स्टार्ट विद द मार्केट स्ट्रक्चर टॉपिक, सपोज फॉर एग्जांपल विल बी स्टार्टिंग लेट अस से टुडे विद मार्केट स्ट्रक्चर, देन एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल से बेस्ड अपॉन दिस लेक्चर यू कैन आंसर दीज 2 क्वेश्चन. गो बैक एंड राइट दोज 2 आंसर एट होम इन एन आंसर फॉर्मेट. क्लास में जो लिख रहे हैं वो नोट्स है, घर पे जो लिखेंगे वो आंसर होगा. बट इफ यू हैव प्रैक्टिसिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस एवरी डे 2 आंसर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 month और 1 year यू विल बी एबल टू राइट. 1 year का प्रैक्टिस अगर कर लो तो अराउंड मोर देन 700 क्वेश्चन आपने लिखे हैं. 300-400 क्वेश्चन में पूरा सिलेबस हो जाएगा इंटायर. दैट मीन्स यू आर एबल टू प्रैक्टिस इट अलॉट, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट आंसर. क्लियर. Now similarly one topic will be this, then the other section if you read the welfare section in micro, from welfare you find let us say in this year there was only 1 question.
देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन, a competitive equilibrium in both Pareto, efficient and equitable. ये फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आ गया कॉम्पिटेटिव इक्विलिब्रियम के लिए. ठीक है, पॉइंट सिर्फ ये हो रहा है कि आपको टॉपिक का वेटेज क्लियर होना चाहिए माइंड में आपके कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज कम है. सो इफ़ यू go by the market structure, you find that regularly more than 3 parts are there. In the welfare section, you find a one question in 22, two question in 21, two question in 2020, again one question in 2019. That means one or two question at the maximum. ठीक है, तो ये टॉपिक है, सारे क्वेश्चन आपके लिए अरेंज किए गए. Then if you scroll, it is Marshallian and Wallachian approach. So in this year there was no question from this section. One question of in 2021, then in 2016, 2014, that means alternate और 2-3 ईयर के गैप पे एक क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो आप टॉपिक का मतलब वेटेज से आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होती है कि आपको किस सेक्शन को हाईलाइट करना है, किस सेक्शन पे ध्यान ज़्यादा देना है, किस पे ध्यान कम देना है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू स्टार्ट कन्वेंशनली by you thinking that since you have to cover micro, if you start any book from micro, even start with the HL Ahuja, initial 200-300 पेजेस तो कंज्यूमर थ्योरी बता रखा है. ठीक है, उसमें कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, बट यू वॉन्ट फाइंड इवन वन क्वेश्चन इन ऑप्शनल from consumer theory. It means I'm not saying those topics are not important, but they are not important from examination point of view. Examination point of view से important नहीं है. That means first priority will be to cover those topics which are coming regularly. Then if you have a spare time, then cover those topics which are coming occasionally or rarely. But that will be a strategy for, let us say, optional civil service. But that consumer theory will become an important topic for the Indian economic service. तो आप जिस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्टडी होनी चाहिए कि यू आर अपेयरिंग फॉर विच एग्जाम. इट कैन नॉट बी अक्रॉस दैट यू आर सिंपली रीडिंग इकोनॉमिक्स. सो इन माइक्रो सेक्शन सिलेबस वाइज माइक्रो, मैक्रो, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल, ये जितने भी टॉपिक हैं सबके क्वेश्चन, मार्केट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन, वेलफेयर के क्वेश्चन, एडवांस मैक्रो, मैक्रो का वेटेज ज़्यादा होता है. ठीक है, मैक्रो इन द रीज़न उसके पीछे है कि मैक्रो में कुछ क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग के भी आ जाते हैं. तो इन द 2022 लास्ट जो एग्जाम अभी हुआ उसमें डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ लिक्विड ट्रैप इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉडल ऑफ इंटरेस्ट. अब अगेन ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लिक्विड ट्रैप का क्वेश्चन. लिक्विड ट्रैप, क्राउडिंग, और दीज आर वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. पॉपुलर क्वेश्चन मीन्स ये आप पास्ट ईयर में एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ऑलरेडी पूछे गए. दैट मीन्स यू नो दैट क्वेश्चन इन एडवांस. So if you know that question in advance, then how much you can score in those questions, that depends upon again what, how much you have practiced. आप जितनी बार आंसर को लिखोगे उतना इफेक्टिव लिखोगे वहाँ पे. मतलब you have to understand the need, what UPSC prefer. So UPSC basically prefer in these paper, that is micro, macro, international growth and development. These are the core of economics. So they are expecting answer from the core book, technical language, keywords. Not only keywords, you are using basically entire sentence, paragraph from the core book. Suppose the question is on classical dichotomy. If you answer directly from the Freud, it will be very good. Just accept that we cannot write better than that. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. I can't write better than Freud, you can't write better than Freud. ठीक है, तो आप उससे बेटर लिखने का कोशिश करो ही नहीं. बेटर ऑलरेडी अवेलेबल है, अवेलेबल है. आपको, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उसको पढ़ करके, लर्न करके उसको क्या कर दो, रिप्रोड्यूस कर दो. इम्प्रोवाइज नहीं करना है, पेपर 1 में नहीं करना है. इन पेपर 2 यू कैन, स्कोप है, बट पेपर 2 पेपर हमारा अप्रोच भी डिफरेंट होगा. इन पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी देयर विल बी अ डिफरेंट अप्रोच. इन पेपर 1 आई विल फॉलो अ डिफरेंट अप्रोच. इट इज़ मोर कोर, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन दैट लैंग्वेज. Now demand for money, transaction approach and cash balance approach, again ये quantity theory of money के दो different approach हो गए. IAS curve is the locus of equilibrium of commodity market. What are the points above and below the IAS curve represent? तो ये बहुत easy question we can say.
but there are some difficult questions also from the macro section. So in 2022 you find 4 question, in 21 you find in fact 1 2 3 4 5 6 7, in fact 8. ठीक है, बट जब मैं 8 कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन मैंने मनी एंड बैंकिंग वाले ले लिए, जो मनी से रिलेटेड है, टेक्निकली वो मनी बैंकिंग में जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये ऑल लास्ट 20-25 ईयर के जो क्वेश्चन है, एज फार एज न्यूमेरिकल इज कंसर्न, ओनली 1 क्वेश्चन न्यूमेरिकली वाज आस्क्ड इन 2020 फ्रॉम IAS एंड इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, this year you find 4 question, like question like explain economic rationale for public expenditure on elementary education in merit good, explain the quantitative method of credit control adopted by the central bank। तो अब quantitative control तो ये बहुत रेगुलर क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पता हुआ एग्जैक्टली उसका इम्प्लीकेशन के साथ लिखो, डिफाइन एग्जैक्टली करो। डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, अगेन ये रेगुलर क्वेश्चन है ये सब। तो जो आंसर होगा वो आपके नोटबुक में कंप्लीट आ जाएगा सारा, आप एवरी डे 1 और 2 आंसर को लिखते जाना। क्लियर, कहाँ से पढ़ना है वो सोर्सेज आपको टेक्स्ट बुक वाले शेड्यूल के अंदर गिवन होगा। सो दिस पेपर 1 इज बेसिकली माइक्रो, मैक्रो, मनी बैंकिंग, इंटरनेशनल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सोर्स क्लियर हो जाएंगे, वो आपके लिस्ट में अवेलेबल होगा। स्ट्रैटेजी कहाँ से पढ़नी है, मतलब कहाँ से करना है, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। यू आर नॉट सपोज टू सर्च फॉर द स्टडी मटेरियल कि आपको ये टॉपिक कहाँ नहीं मिल रहा है, वो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी सर्च इट, तो आपको वो कंटेंट मिल जाएगा एक जगह। कंपाइलेशन ऑफ दोज वेरियस सोर्सेज वो आपका स्टडी मटेरियल है। लाइक फॉर एग्जांपल यू विल गेट अ माइक्रो स्पाइरल, इन दैट माइक्रो स्पाइरल जो भी अलग अलग टॉपिक है डिफरेंट बुक के, वो एक जगह होंगे। मैक्रो विल बी अ कलेक्शन ऑफ वेरियस बुक्स which will include Freud, few chapters, Dornbush and Fisher, then Blanchard, गॉर्डन। तो अलग अलग जो बुक्स है, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उस बुक के, वो आपको इस कंटेंट मटेरियल के अंदर मिल जाना। सिमिलरली फॉर मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, वन इम्पॉर्टेंट बुक इज SB गुप्ता मॉनेटरी इकोनॉमिक्स एंड अदर इज HL भाटिया फॉर पब्लिक फाइनेंस। बट these 2 books, apart from these 2, you have to cover from Musgrave and Musgrave also, only 3 chapters from Musgrave and Musgrave and 2 chapter from Stiglitz, optimal taxation and tax inefficiency। तो जो कंटेंट होगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट बुक्स हैं। इंटरनेशनल में देर आर 2 बुक, वन इज पॉल क्रूगमैन, अदर इज सैल्वाटोर। इसके अलावा कोई सोर्स करने की जरूरत नहीं है, पॉल क्रूगमैन एंड सैल्वाटोर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देर आर इनफैक्ट मेनी, बट यू कैन गो बाई ML जिंगन। ML जिंगन में मोस्ट ऑफ द मॉडल मिल जाते हैं, बट ML जिंगन में जो कंटेंट नहीं मिलेगा वो कंटेंट मैंने स्पाइरल में अलग से दे रखा है। लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन देख लो पहले। व्हाट डू यू मीन बाय द वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम, ये हैरोड्स इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। देन लुइस मॉडल, distinguish between gender development index and gender empowerment measure in terms of their component and construction। अब ये factual answer है ये सब, if you know exactly what are the components, मतलब वो सब SDR रिपोर्ट के अंदर होता है। तो रिसेंट रिपोर्ट है, उसका सिग्निफिकेंस के साथ एक्सप्लेन करोगे, यू कैन स्कोर मोर इन दिस क्वेश्चन प्रोवाइडेड यू नो इट एग्जैक्टली। State the function of the UNCTAD. Do you think that UNCTAD has been successful in extending economic cooperation among the developing countries? Justify your answer. What are the major achievement of and failures of the conference of parties 26? अब अचीवमेंट और फेलियर आप तभी बता सकते हो जब एग्जैक्टली आपको सारे पॉइंट्स मालूम हो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सो growth and development, again you find 5 to 6 question at least in this growth and development section. Out of those 5 and 6, 1 or 2 will always be on the model, and there are in fact 10 to 15 models total. तो 10 to 15 मॉडल्स है, वो पूरा के सारे मॉडल आपको याद रखने। आउट ऑफ दैट 10 to 15 certainly you will get 2 or more than 2 question. You have to basically just reproduce that content in your answer. So growth and development is another important part. So these are the 5 section in the paper 1. Clear? Now if you go for paper 2,
पेपर 2 is mainly Indian economy. अभी जो कंटेंट है इसको पहले आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली देख लो. यूपीएससी में सिलेबस पेपर लिखा गया. You can divide this into syllabus has divided into 3 parts in fact. One, Indian economy in the pre-independence period. ठीक है, Indian economy in the pre-independence era. It is mainly economic history of India. Pre-independence. Land system, its changes, commercialization of agriculture, drain theory, laissez-faire policy, manufacturing and transport, jute and cotton, railways, money and credit. अब सिलेबस के अंदर बेसिकली ये टॉपिक मेंशन्ड है. इफ यू सी द क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट अराउंड 8 to 10 टॉपिक्स हैं यहाँ. आउट ऑफ दैट 8 to 10 टॉपिक एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं. लास्ट 3-4 ईयर से तो आ रहे हैं एटलीस्ट. बट दिस इज अ सेक्शन विच इज स्पेसिफिकली इन द ऑप्शनल, नॉट इन द इकोनॉमिक सर्विस. ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्विस के लिए दे रहे हैं याद रखिएगा, ये वाला सेक्शन आपके लिए नहीं है. ठीक है, ये ऑप्शनल के अंदर तो आता है बट इकोनॉमिक सर्विस में नहीं आता है. इकोनॉमिक सर्विस में इंडियन इकोनॉमी इज बेसिकली सिंस इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात नहीं होती वो. नाउ फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली दिस. द सेकंड पार्ट इज इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. One, pre-liberalization, that is pre-91, and second is post-liberalization since 1991. So syllabus basically is format arranged है, but I have divided this paper into our Indian economy into 10 different parts, and that will be better rather than covering pre-independence or pre-liberalization or post-liberalization. It is always better to cover Indian economy sector-wise. लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो हम प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म दोनों एक साथ पढ़ेंगे. इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो प्री रिफॉर्म पोस्ट रिफॉर्म एक साथ कर लेंगे. एक्सटर्नल सेक्टर है, प्री रिफॉर्म पोस्ट रिफॉर्म अगेन. सो 10 different parts. So those 10 different parts I will be explaining that part. So you can say one will be Indian economy in the pre-independence era. जैसे इसको कॉपी कर लेंगे. Indian economy in pre-independence era. Indian economy in the pre-independence period. अब जो pre-independence period है उसमें just see that question topic wise. ठीक है, यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा सिलेबस का. दिस इंडियन इकोनॉमी इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. अभी जो एग्जाम लास्ट वीक हुआ है उसमें 3 क्वेश्चन है. इनफैक्ट 21 में यू फाइंड 1 2 3 4 क्वेश्चन. इन 2020 अगेन यू फाइंड 4 क्वेश्चन. आई सेड 8 और 10 टॉपिक ही बनते हैं, एंड आउट ऑफ दैट 8 and 10 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं. मतलब ये क्वेश्चन एक तरीके से आपको मालूम है पहले से, वो पूल मालूम है, उसमें से पूछे जाने. लाइक दिस ईयर क्वेश्चन वाज आउटलाइन द फैक्टर दैट कॉज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया इन द इंडियन एग्रीकल्चर. डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ जूट इंडस्ट्री ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस. आप सिलेबस देखो और क्वेश्चन देखो. तो जूट इंडस्ट्री वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, हैंडीक्राफ्ट मेंशन्ड है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मेंशन्ड है, लैंड टेन्योर सिस्टम मेंशन्ड है. तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी डायरेक्टली पढ़ते जाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी, अब जरा सिलेबस को ये पार्ट देखो. आप यहाँ पे जूट इंडस्ट्री स्पेसिफिकली लिखा हुआ है. कॉमर्शियलाइजेशन लैंड टेन्योर स्टार्ट में मेंशन है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मेंशन है. तो अगर सिलेबस को भी हम प्रॉपरली रीड कर जाए तो वहाँ से वो क्वेश्चन बन जाता है. So 8 to 10 topics are there. Out of that 8 to 10 topic, you will get 3 to 4 every year. Now again, how much you can score in those, that will depend upon क्वेश्चन. तो आज की डेट में आपको मालूम है, आप इतने पीरियड में आपने कितना बार पढ़ा, उसको कहाँ से पढ़ा, कैसे लिखा है, और कितनी बार खुद से लिखा है, एंड हाउ यू आर एबल टू रिप्रेजेंट इट इन द एग्जामिनेशन हॉल. दैट विल डिटरमाइन योर स्कोर.
So your first topic is basically this. Then ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप डाउनलोड करके एक जगह एक फाइल सेपरेट मेंटेन कर लेना. देन सेकंड टॉपिक विल बी एग्रीकल्चर. तो आप एक जगह पहले वो कंटेंट लिखते जाना. फर्स्ट टॉपिक इज दिस, सेकंड इज एग्रीकल्चर. So when I write agriculture here, that means agriculture pre-liberalization as well as agriculture post-liberalization. ठीक है, दोनों कवर कर लेंगे आप. In agriculture also you will find certain subtopic like agriculture performance, then green revolution, agriculture price policy, farm law से related question हो गया, food management से related question हो गया, PDS से related question हो गए. बट वो एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर. ठीक है, क्वेश्चन पेपर से बेसिकली वो आइडेंटिफाई करोगे. तो अब एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है वो एक जगह देखिए. एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जब आप एक जगह देखते हैं तो इसमें डिस्कस द फीचर्स ऑफ टारगेटेड, दैट इज टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, एंड पॉइंट आउट द ऑब्स्टेकल्स इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन. तो आपको अगर पीडीएस सिस्टम, टारगेटेड पीडीएस क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, if you know them and you are able to reproduce it. Then second question is on green revolution. Discuss how the green revolution has affected the indigenous crop in India. Third is discuss the rational and continuance of power and irrigation subsidy in the agriculture sector. Next is effective land reform is necessary but not sufficient condition for raising agriculture productivity. तो ये again you find 3 questions from the agriculture section. ये 3 क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाले. 21 के अंदर अगेन यू फाइंड 1 2 3 4 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के. बट अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन यहाँ पे है तो ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ भी, जस्ट वर्ड्स डिफरेंट होंगे, थोड़ा सा ओरिएंटेशन अलग होगा. तो कॉमर्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म, फूड मैनेजमेंट, दीज आर द रेगुलर एंड पेट क्वेश्चन इन द एग्रीकल्चर सेक्शन. पढ़ते समय आपके पास अलग अलग सोर्सेज होंगे, लाइक you have to be familiar with the static part as well as with the dynamic part. The static part you can prepare from Mission Puri, Indian economy. वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है इन द सेंस पॉइंट्स वहाँ गिवन है, कॉजेज गिवन है. जैसे मान लिया लैंड रिफॉर्म ही है तो लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव, मेजर्स, इवेल्युएशन. सो इफ़ यू नो दोज पॉइंट्स देन यू कैन बिल्ड योर आंसर. यहाँ पे थोड़ी लिबर्टी आपके पास है कि एग्जैक्टली वही नहीं लिखना है जो बुक में लिखा हुआ है, यू कैन मॉडिफाई हियर. बट हियर ऑल्सो इफ यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस आंसर फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे देन इट विल बी बेटर. सर्वे का लैंग्वेज अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लो दैट विल बी वेरी गुड. बट वो वॉल्यूमिनस होता है, उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है. आप उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लेकिन हम लर्न कर सकते हैं. तो उस इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ का एक सेपरेट कलेक्शन करके मैंने वो रखा हुआ है. तो जैसे नया सर्वे आएगा उसके अकॉर्डिंगली भी होता रहेगा. तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि वो जो शॉर्ट पैराग्राफ है, लाइक फूड मैनेजमेंट है तो बिलो दैट फूड मैनेजमेंट जो फर्स्ट पैराग्राफ है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है बिलो दैट फर्स्ट पैराग्राफ. आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट डिटेल डेटा, just initial paragraph. If you can incorporate that paragraph in your answer, that will be very good. So from agriculture section again 3-4 questions are coming regularly. One Vishapuri economic survey, and then there are certain articles, specific articles जो आप उमा कपिला के बुक में मिल जाएगी. आप उमा कपिला की बुक में इनफैक्ट एडिटेड बुक है वो, मतलब EPW के जो आर्टिकल्स है वही उस बुक के अंदर है. तो इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग EPW, बट वो वॉल्यूमिनस हो जाता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा. एवरी वीक आपको मिल जाएंगे वो, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सेपरेट कि कौन सा आर्टिकल हमारे लिए रिक्वायर्ड है, कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है. बट सर्टेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम EPW वो कंपाइल करके आपके स्टडी मटेरियल में डाला गया. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल महेंद्र देव का आर्टिकल है एग्रीकल्चर के अंदर, अगर आप वो रेफर कर लो, या ग्रोथ परफॉर्मेंस का आर्टिकल है अरविंद सुब्रमण्यम का. तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आप उसको पढ़ के रखेंगे दैट विल बी गुड. लाइक डेमोग्राफी के अंदर डेविड ब्लूम का या KS जेम्स का, तो वो आर्टिकल रेफर करके, लेकिन सिर्फ अंडरलाइन वहाँ नहीं करना है, आपको वहाँ से नोट करके कहाँ रखना है, अपने नोटबुक में रखना है, और फिर वो नोटबुक से बेसिकली पढ़ना है और उसको ट्राई करना है कि वो याद हो जाए. ठीक है.
तो सेकंड सेक्शन इनफैक्ट एग्रीकल्चर का है। थर्ड सेक्टर वाइज इसको कवर करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इंडस्ट्री एंड सर्विस, इसको क्लब कर सकते हैं, इंडस्ट्री एंड सर्विस। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल सर्विस के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, लाइक इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, देन एमएसएमई। सर्विस सेक्टर में जस्ट लाइक क्वेश्चन लाइक इंडियन इकोनॉमी सर्विस लेड ग्रोथ, इज इट अ सर्विस लेड ग्रोथ, और इंडियन इकोनॉमी ओवर टर्सराइज्ड, तो क्या इस तरीके का स्टेटमेंट सही है। तो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ये इकट्ठे एक साथ करना। करंट ईयर में आया था स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रमोट इंडिजिनस एंटरप्राइज, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। डू यू सब्सक्राइब टू द व्यू दैट प्राइवेट सेक्टर इज अ की ड्राइवर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया? गिव रीजंस। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन? What are the various methods of privatization? Point out the methods adopted by government for disinvestment. अबे disinvestment का क्वेश्चन रेगुलरली है। Critically evaluate the performance of public sector. तो 22 के अंदर ये 3 क्वेश्चन है, 21 में अगेन यू फाइंड 4 क्वेश्चन। पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखो, प्राइवेटाइजेशन का ये क्वेश्चन देख लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे है। तो रेगुलरली ये क्वेश्चन बेसिकली है, 7-8 टॉपिक यहाँ पे बनते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड देन आफ्टर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रोथ, इट्स कंपोजिशन एंड ट्रेंड। ग्रोथ है, उसका कंपोजिशन और ट्रेंड है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ ग्रोथ रिकॉर्ड हैज चेंज एंड हाउ द कंपोजिशन हैज चेंज। ग्रोथ रिकॉर्ड चेंज मीन्स सपोज इफ आई से क्वेश्चन इज एग्जामिन द ग्रोथ पैटर्न इन इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, तो सिंस इंडिपेंडेंस के ग्रोथ पैटर्न को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब सिंस इंडिपेंडेंस से आज तक तो काफ़ी लंबा पीरियड हो गया। आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि मतलब 1950 से 1980s तक का ग्रोथ, फर्स्ट 3 डेकेड। तो फर्स्ट 3 डेकेड का ग्रोथ आपने बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया कि इट वाज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाई लो रेट ऑफ ग्रोथ। उसको टेबुलर ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे समझाया जा सकता है, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेट ऑफ ग्रोथ 1950 to 1980. After that we find a higher rate of growth. So question is, what was the reason for this upturn? Why the growth rate? Popularly तो हम जानते हैं कि रिफॉर्म 91 में स्टार्ट हुआ, बट रिफॉर्म से 1 डेकेड पहले ही ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया था। तो what was the reason for that? Then after 1991 that growth momentum increased further, वो लाइन और स्टीपर हो गई। तो what was the reason for that 1991? But that growth momentum was not sustained for a longer period. After 98-99 the growth rate declined till 2003-04. 2003-04 onwards that growth rate again increased. तो ये till 2009-10. 2009-10 onwards again growth rate reduced. So जितने भी यहाँ पॉइंट्स बना रहे हैं, एक्सपेक्टेड ये होता है कि आपको वो जो टर्निंग पॉइंट होता है उसका रीज़न पता होना चाहिए। व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट? वाई हाई ग्रोथ रेट, वाई लो ग्रोथ रेट? सो वन वाज द आइडिया ऑफ द ग्रोथ रेट। द सेकेंड इज हाउ दैट कंपोजिशन है चेंज। कंपोजिशन मीन्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस का जो रिलेटिव शेयर है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। सो व्हाट, हाउ इट हैज चेंज, व्हाई इट हैज चेंज, एंड वेदर इट हैज चेंज इन द डिजायरेबल डायरेक्शन और नॉट। क्या वो डिजायरेबल डायरेक्शन में है कि विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी फाइंड दैट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर विल डिक्लाइन, देन द शेयर ऑफ इंडस्ट्री विल इंक्रीज, देन द शेयर ऑफ फाइनली सर्विस सेक्टर विल इंक्रीज, जो नॉर्मल ट्रेंड है। बट इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है? इंडियन इकोनॉमी हैज बेसिकली टेकन अ लीफ फ्रॉग जंप directly from agri to service bypassing, and that is the core reason for huge unemployment, because सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम होती है, वहाँ पे ग्रोथ प्रोडक्टिविटी से हो रहा है, वहाँ पे ग्रोथ टेक्नोलॉजी से हो रहा है, और इंडस्ट्री बेसिकली ज़्यादा लेबर एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इलास्टिसिटी वहाँ ज़्यादा होती है।
तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट, सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दोज आर्गुमेंट। तो इस तरीके के चार्ट से बेसिकली आपको फैक्ट भी याद रखना है कि एग्जैक्ट ग्रोथ रेट क्या था, बट यू कैन प्रेजेंट इट ग्राफिकली एज वेल। So the fourth topic is basically growth and its composition. ये टॉपिक कंप्लीट कर लो पहले। ग्रोथ रिकॉर्ड एंड इट्स कंपोजिशन। ग्रोथ रिकॉर्ड एंड इट्स कंपोजिशन। Then all topics related to public finance वो क्लब करके एक जगह पढ़ लेंगे। All topics related to the public finance, which will include basically your all taxation reform, then GST related question, finance commission question, और कोई भी टॉपिक लेकिन बिगिन करने से पहले आई विल ऑलवेज सजेस्ट फर्स्ट सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है कि किस टॉपिक को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑलवेज सी दैट क्वेश्चन, सो लाइक डिस्कस द इफेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू 73rd and 74th constitutional amendment. Discuss the desirability of increased public expenditure in India in the recent year. Point out the fiscal responsibility budget management act. तो अगर आपको एक्ट के प्रोविजन मालूम है FRBM के और उसके बाद के जो चेंजेस है, क्योंकि एक्ट तो 2003 का है, आफ्टर दैट उसके बहुत सारे रिसेंट चेंजेस हो गए, मॉडिफिकेशन हो गए। तो व्हाट वर द चेंजेस, व्हाई देयर वाज चेंज, व्हाट वर द नीड। तो जो इंस्टीट्यूशनल मेजर है उसके अंदर बेसिकली ये करना है। एनालाइज द गार्डगिल फार्मूला फॉर रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस इन द फिस्कल हेल्थ, बट ये अब काफ़ी ओल्ड कंसेप्ट हो गया। लास्ट ईयर द क्वेश्चन वाज रिकमेंडेशन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन। अभी कौन सा कमीशन चल रहा है? तो 15th अगर चल रहा है तो 15th के रिकमेंडेशन तो ठीक है, 14th भी समझ में आता है, बट पूछा क्या, तो इस क्वेश्चन का क्या करना है? क्या अगर 12th पूछ लिया तो हम स्टार्ट फर्स्ट से लेकर के 15 तक याद रख सकते हैं? नहीं, कोई इट इज फ्यूटाइल एक्सरसाइज है वो। बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू फेस, मैं ये कह रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, बिकॉज अगर 12th पूछ लिया इसका मतलब नहीं कि आप 10th भी पढ़ोगे 9th भी पढ़ोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा डेटा आप याद रख नहीं सकते हो। तो पढ़ना तो रिसेंट वाला ही होगा, बट कभी कभी ओकेजनली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया टेस्ट लग जाता है कि विद इन पब्लिक फाइनेंस व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन यूजुअली पूछते हैं। देन आफ्टर पब्लिक फाइनेंस अनदर एरिया विल बी एक्सटर्नल सेक्टर। Balance of payment problem, capital account convertibility, all those topic will be covered in this external sectors. WTO with respect to Indian economy. अब लाइक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का क्वेश्चन रेगुलरली आता है, उसमें मोस्ट पॉपुलरली वी नो विद द तारापुरे कमेटी। बट तारापुरे कमेटी 1, तारापुरे कमेटी 2, तो 1 के रिकमेंडेशन तो यूजुअली सबको मालूम रहते हैं, सेकंड वो बाद में जब आया उसके अंदर क्या क्या चेंजेस थे। देन 7th टॉपिक यू कैन मेक एज प्लानिंग। बट प्लानिंग वाला जो क्वेश्चन है उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा कंटेंट, मतलब इट इज़ नॉट कि एवरी ईयर हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पब्लिक फाइनेंस हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर के क्वेश्चन हो गए, मॉनेटरी मैनेजमेंट, एक्सटर्नल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। पॉइंट आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ CN वकील इन द इंडियन इकोनॉमी। अब ये सब यार के थोड़े टू सम एक्सटेंट वी कैन से हिस्ट्री है, मतलब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट थे कि हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू डेवलप द इकोनॉमी, तो अलग अलग अप्रोच थे, तो डिफरेंट अप्रोच में अलग अलग इकोनॉमिक्स का अपना उन कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें CN वकील का, VKRB राव का, CN वकील फिर यहाँ पे देखो। देन
8th, 9th एंड 10 डिफरेंट पार्ट्स मैंने कर रखा है। एक सेक्शन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो कर लेंगे। प्रॉब्लम्स का मतलब है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, और उसके अंदर आप डेमोग्राफी का टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑल विल बी क्लब टुगेदर एज वन सेक्शन। Another important part is monetary management. मॉनेटरी मैनेजमेंट, तो मॉनेटरी मैनेजमेंट के अंदर आप बैंकिंग ये ऐड कर लेंगे। ठीक है, like questions like describe in a brief the factor that led to establishment of RBI in the country. What led to the factor which established RBI in the country? Question nationalization of बैंक की बात नहीं हो रही है, establishment of the Reserve Bank. Discuss the main features of monetary policy 2022. How far these objectives differ from the previous monetary policy. अब यहाँ पे जो टॉपिक है ना, ये दिस विल हेल्प इन योर जीएस पेपर 3 ऑल्सो, और वाइस वर्सा यू कैन से। आपको वहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं तो उसका कंटेंट आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप उसको रेफर किया तो जीएस3 में उसको यूज कर सकते हैं। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट और आरबीआई जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर एनपीए का प्रॉब्लम है, तो एनपीए के प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी रेगुलरली पूछे गए। तो इंटायर पब्लिक फाइनेंस इज ऑल अबाउट द फिस्कल चेंज, फिस्कल पॉलिसी, एंड मॉनेटरी इज ऑल अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी इन द सिस्टम। एंड वन फाइनल टॉपिक इज बेसिकली द करंट टॉपिक्स। ठीक है, तो ये 10 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, वी कैन से इंडियन इकोनॉमी, एंड दैट विल बी बेटर अगर आप इस तरीके से प्रोसीड करते हो। प्री इंडिपेंडेंस, देन एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री एंड सर्विस, ग्रोथ रिकॉर्ड, पब्लिक फाइनेंस, एक्सटर्नल सेक्टर, प्लानिंग एंड दिस। एंड जिस मैंने इकोनॉमी सर्विस के लिए बता दिया वो फर्स्ट वाला सेक्शन नहीं होगा, रिमेनिंग सारे होंगे। ठीक है, ओनली प्री इंडिपेंडेंस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस फॉर इकोनॉमी सर्विस। Then if you go by the source for this Indian economy, then for that pre-independence part, SSM देसाई, ठीक है, वो प्री इंडिपेंडेंस दैट इज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो इजी बुक है, बट वो सारे कंटेंट एक्सप्लेन कर रहा है। यू कैन रीड फ्रॉम तीर्थंकर रॉय ऑल्सो, बट तीर्थंकर रॉय वगैरह से आपको आंसर बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा लैंग्वेज वाइज डिफिकल्ट होगा, और ये आंसर फ्रेम करने के लिए इजी बुक होगा, पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे। देन मिश्रा एंड पुरी, इंडियन इकोनॉमी। देन उमा कापिला, difference between these two will be that these are in this you will find many articles from EPW. this will help in framing answer, वो easy language है, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज होगा, तो ये इजी लैंग्वेज होगा। सो इफ यू स्टैटिक जो पार्ट है उसको आप यहाँ से कवर कर लो, कुछ रिसेंट आर्टिकल पढ़ना, फॉर दैट पर्पस यू कैन रेफर उमा कपिला। एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो 2021-22 का जो सर्वे ऑलरेडी पहले मार्च के मंथ में था, ऑलरेडी वो डिस्कस्ड है, वो उसके फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है, और ये जब फरवरी के मंथ में आ जाएगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड अगेन 7 लेक्चर अराउंड फॉर दिस न्यू इकोनॉमिक सर्वे। बट सर्वे मेन डॉक्यूमेंट है, एनी हाउ यू हैव टू रेफर इट फॉर प्रीलिम्स पर्पस व्यू प्लस जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको ऑप्शनल में आंसर में इंक्लूड भी करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 4 फॉर इंडियन इकोनॉमी सेक्शन न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर आप रेफर कर रहे हो
हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी, बट कोई एक रेगुलरली आप न्यूज़पेपर रेफर करते रहना। न्यूज़पेपर में बेसिकली आपको नए आर्टिकल मिल जाएंगे। इट इज नॉट दैट एवरी डे इट इज कमिंग, बट इन अ वीक यू विल ऑलवेज फाइंड दैट 1 और 2 आर्टिकल इकोनॉमी रिलेटेड होता है। तो वो जो कंटेंट है उसको आपने पढ़ लिया और जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है वहाँ से उसको नोट कर लेना, ठीक है। सिर्फ अंडरलाइन करके वहाँ नहीं छोड़ना, उसको आपके नोटबुक में आना चाहिए। और एग्रीकल्चर जहाँ है उसमें एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में, मतलब पेपर 2 को भी अपने 10 पार्ट्स में नहीं बोला है, तो 10 को भी आपने डिवाइड कर लिया। अगर कोई 1 स्पाइरल के अंदर भी लिख रहे हो तो एग्रीकल्चर के टॉपिक एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री के इंडस्ट्री में, सर्विस के सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए। वो आपको एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको सारे टॉपिक जो स्टैटिक थे वो लिख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ लिख लिए, नोट्स क्लास का आ गया, वहाँ पे न्यूज़पेपर आ गया, तो वो सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इसके अलावा और कोई सोर्स करने की जरूरत पेपर 2 के अंदर नहीं है। So this is basically the approach, overall content and the paper pattern. If you are not aware about that, paper pattern याद रखेंगे इसमें। फर्स्ट पेपर सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर 1, it will have 5 parts. ये कंपल्सरी है। Sir, optional के? हाँ, after that I will explain for economics. For optional, first question is compulsory in section A. Then question number 2 will have 3 parts. Question number 3, again it will have 3 parts. Question number 4, 3 parts. So you have to attempt that compulsory question and at least one more question from this section. Then section B starts with question number 5, A, B, C, D and E, 5 parts. ये क्वेश्चन फिर से कंपल्सरी हो गया सेक्शन बी का पहला। एंड क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, ठीक है। इनमें सब में 3 पार्ट है फिर क्वेश्चन के, मतलब इन टोटल 28 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, ठीक है। 28 पार्ट्स हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 19 बोथ कंपल्सरी क्वेश्चन, तो 10 पार्ट्स तो ये हो गए, और 3 क्वेश्चन के अलावा और करने। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। सपोज यू ऑब्वियसली फर्स्ट और फिफ्थ कर लिया हमने, यू ऑप्टेड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ईयर फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपको एक क्वेश्चन और करना है सेक्शन बी के। तो हमने बेसिकली अटेम्प्ट कितने किए? 19 पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 है। क्लियर? 19 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट विद इन 3 आवर, मतलब लेस देन 10 मिनट का टाइम होता है, ठीक है, 1 क्वेश्चन के लिए। लेस देन 10 मिनट में आप आंसर इफेक्टिवली तभी ले सकते हो जब बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो। अगर आप वहाँ सोचने का लिए टाइम अलग चाहते हो तो नहीं है वो, ठीक है। तो स्पेस कंस्ट्रेंट विल बी देयर, टाइम कंस्ट्रेंट विल बी देयर, तो ट्राई टू रिमेंबर अलॉट। फैक्ट भी लिखना प्लस जो लैंग्वेज है वो भी। और ये बैक टू बैक पेपर होता है, फॉर्मेट ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करता है। अगर गैप लेकर के पेपर हो फिर भी थोड़ा कंफर्ट हो जाता है, बट आपने 3 घंटे पहले पेपर 1 दिया है, फिर ब्रेक के बाद ये लिखने जा रहे हो, सेम डे का पेपर है आपको, ठीक है। तो जितना ज़्यादा याद होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। नाउ आउट ऑफ दोज 18, even when the question paper is very difficult, रिमेंबर ये ओवरऑल क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? हर क्वेश्चन 50 नंबर के, 8 क्वेश्चन है, मतलब 400 मार्क्स का क्वेश्चन है। यू अटेम्प्ट 250, आप अटेम्प्ट 250 का करते हो, बट क्वेश्चन पेपर तो पूरे 400 नंबर का बना हुआ है। एनी डे इवन व्हेन द क्वेश्चन पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, जो ओकेजनली 3-4 साल पे हो जाता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, वहाँ भी याद रखिएगा 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा डूएबल होगा, मतलब इजी होगा। बट उस इजी में स्कोर करने के लिए आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है पहले से। इन दैट 150 यू कैन स्कोर 100 प्रोवाइडेड कि वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, और वो
मैंने 400 में बोला 150 का क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन डिफिकल्ट मान लिया मैंने। ओनली 150 मार्क्स का क्वेश्चन का इजी है। एंड जो रिमेनिंग 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें अगर आपको ओनली पासिंग मार्क्स अराउंड 35-40 भी अगर लाते हो तो ये जो नंबर आ रहा है 135 to 140, इट इज गुड इनफ टू गेट एनी रैंक। क्योंकि अगर आपने ये दोनों पेपर के अंदर मेंटेन कर लिया तो ये 270 और 280 का स्कोर हो गया। 270 to 280 का स्कोर है, गुड इनफ टू गेट एनी रैंक। ऐसा टॉप 10 के अंदर भी ये स्कोर होता है, ठीक है। मतलब बट यू कैन मैक्सिमाइज इन पेपर 1। आप पेपर 1 में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी है, कुछ सिलेबस डिफाइंड है। सो इन पेपर 1 स्टूडेंट्स कैन रीच 170-180 भी आते हैं वहाँ पे, और ओनली 80 भी आते हैं। इसका मतलब है वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। यू कैन स्कोर 180 ऑल्सो, 80 ऑल्सो। अगर आपने एग्जैक्ट नहीं लिखा तो ओनली 100 से नीचे भी आते हैं, और अगर आप एग्जैक्टली लिख रहे हो, क्वेश्चन जस्टिफाई कर रहे हो तो 170-180 का स्कोर भी आता है। बट इन पेपर 2 वेरिएशन कम होता है। जिनका सिलेक्शन होगा और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पेपर 2 में नहीं होता है। एंड ऑन एन एवरेज 130 ±7-8 मार्क्स लगा लो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल फाइंड इन दैट रेंज। बट इन पेपर 1 देयर इज वेरिएशन, दैट मीन्स योर selection or rejection will be mainly determined by your performance in paper 1. पेपर 1 डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है, तो पेपर 1 पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको स्कोर के लिए, बट याद रखिएगा ये तब मैं कह रहा हूँ जब क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ गया, वहाँ पे आपको बेसिकली इवन इन दैट कंडीशन यू हैव टू मैनेज, तो यू हैव टू मैनेज बेसिकली दैट मच स्कोर एटलीस्ट। अब लास्ट ईयर का ट्रेंड जो भी रिकॉर्ड है अवेलेबल, ओपन रिकॉर्ड होते हैं, मतलब आज की डेट में सारे हर स्टूडेंट का मार्क्स आपको मालूम है जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो आप किसी भी स्टूडेंट का अगर देखते हो तो लेस देन 300 है, लास्ट 2-3 ऐसे बेसिकली ट्रेंड ही है। लास्ट रैंक 3 हो, रैंक 4 हो, रैंक 8 भी इस बार, उसके भी 300 मार्क्स नहीं है। बट ये सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑप्शन की बात नहीं, इट इज़ अक्रॉस अदर ऑप्शन एज वेल, लिविंग 1 और 4। तो ये ओवरऑल आपको एम याद रखना है। देन I think I have explained everything related to the optional। पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर है, जो टॉपिक क्लियर है, सोर्सेस क्लियर है, और मार्किंग स्कीम। नाउ जस्ट फॉर दोज हु आर अपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक सर्विस, रिमेंबर यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं है तो मेजर हर्डल वो नहीं है, आपके लिए 1000 मार्क्स का पेपर है। सो जनरल इकोनॉमिक्स 1 200 marks, general economics 2 200 marks, general economics 3 200 marks, and Indian economy 200 marks। ये 800 marks 200 into 4 and general studies and general English 100 each। 1000 का ये ओवरऑल पेपर है, ठीक है। एंड कट ऑफ इज लेस देन 45%। लास्ट ईयर कट ऑफ वाज जस्ट 440, बट 440 अगर मैं कह रहा हूँ इवन व्हेन द नंबर ऑफ सीट्स वर ओनली 15, बट इफ द कट ऑफ इज इन द रेंज ऑफ 44 और कभी हायर भी गया तो 46-47% गया, उससे ऊपर नहीं जाता। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर करना डिफिकल्ट। एंड व्हाई इट इज डिफिकल्ट, ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी आ रहा है, बट कवरेज सिलेबस का ज़्यादा होता है, यू हैव टू कवर इट अ लॉट, एंड फॉर्मेट ऑफ एग्जाम इज अगेन मेकिंग इट डिफिकल्ट। बैक टू बैक पेपर होते हैं, सेम डे आपको 2 पेपर देने, तो प्लस मार्किंग इज स्टेप, दैट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग व्हाट, जो पेपर 1 में बोल रहा था वो यहाँ भी है। दे आर एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम बुक, दे आर एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम इन दैट बुक इज लैंग्वेज, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उतना याद करके लिख नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया होता। प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा वो, अगर आपने लिखा नहीं है सिर्फ पढ़ा है तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में अपने लैंग्वेज ही लिखोगे।
वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो आपको वो अवॉइड करना है. एंड नाउ द डिफरेंस इन द सिलेबस पार्ट इज दैट दिस पेपर 1 इज यू कैन से कंप्लीटली डिफरेंट. ये ऑप्शनल के कंटेंट में नहीं है. ऑप्शनल में मैंने 2 पेपर आपको बताया. सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमी हो गया, वो तो ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पे. रादर यहाँ पे कम पढ़ना है, वहाँ ज़्यादा पढ़ना है. एंड दिस सेकंड एंड थर्ड पेपर ये आपका पेपर 1 हो गया. मतलब इट इज़ माइक्रो, मैक्रो, मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट अ लिटिल बिट मोर डिटेल. ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आ जाएगा. तो इकोनॉमिक सर्विस का जो लेक्चर होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 230 to 240 नंबर ऑफ लेक्चर होंगे इकोनॉमिक सर्विस के क्लास के अंदर. आउट ऑफ दैट 230 एंड 240 जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ जो कंटेंट आपका ओवरलैप कर रहा है उसमें 130 to 140 ये क्लास आपकी कॉमन होती है. ठीक है, जो कॉमन आपकी क्लासेज होगी. इस कॉमन क्लास में आपकी ये मंडे टू फ्राइडे मतलब 5 लेक्चर आपके ये होते रहेंगे. दैट मीन्स जो ऑप्शनल का कंटेंट है, बट जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्विस में रिक्वायर्ड होगा वो सेपरेट लेक्चर है, मतलब अराउंड 100, विच विल बी इंक्लूडिंग मेनली पेपर 1 इकोनॉमेट्रिक्स, स्टैट्स, मैथ्स, माइक्रो न्यूमेरिकल, कंज्यूमर थ्योरी, environmental economics separately, then general studies lectures, language lecture है. ठीक है, तो ये अलग से जो 100 लेक्चर है ये ऐड करेंगे तो आपका ये ओवरऑल कंटेंट हो जाता है. सो व्हाट इज कॉमन बिटवीन बोथ, यू कैन से दैट 130-140 लेक्चर इज कॉमन. ठीक है, इट इज इन कॉमन फॉर सिविल सर्विस एज वेल फॉर द इकोनॉमिक सर्विस. ठीक है, बट दोनों का टेस्ट पैटर्न डिफरेंट है. ठीक है, टेस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर बिकॉज अलग अलग है. Although you will find many question same to same question copy भी होता है. मतलब इकोनॉमिक सर्विस में आ गया कभी, वो फ्यूचर में सिविल सर्विस में आ गया, सिविल सर्विस में आ गया, वो फ्यूचर में इकोनॉमिक सर्विस के आ गया. सो यू आर इवन इफ यू आर एमिंग ओनली फॉर इकोनॉमिक सर्विस, आप ऑप्शनल के क्वेश्चन को देखो पूरा का पूरा. ठीक है, और अगर आप ओनली सिविल सर्विस दे रहे हैं तो भी इकोनॉमिक सर्विस का क्वेश्चन देखो लीविंग पेपर 1. ठीक है, क्योंकि वो आपके रिक्वायरमेंट का नहीं होगा. तो ये ओवरऑल पार्ट बेसिकली इस इकोनॉमिक सर्विस का सेक्शन में है. नाउ टेस्ट सीरीज which is included in your course. So in इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले में यहाँ पे 12 टेस्ट है. इस 12 टेस्ट का कंपोजिशन इनफैक्ट है 8 टेस्ट फॉर पेपर 1 and 4 tests for paper 2. ठीक है, और इकोनॉमिक सर्विस में 15 टेस्ट हैं. ठीक है, 15 टेस्ट होंगे. जनरल इकोनॉमिक्स 1, 3, जनरल इकोनॉमिक्स 2, 3, जनरल इकोनॉमिक्स 3, अगेन 3, इंडियन इकोनॉमी 3, फिर जनरल स्टडीज़ का और जनरल इंग्लिश के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे 15 टेस्ट है, बट टेस्ट स्ट्रक्चर इट इज़ फ्लेक्सिबल. जब आप प्रिपेयर हो तब उसको लिखना है, और शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वो अपलोड हो गया या अपलोड हो जाएगा ऑन दैट डे, बट यू कैन राइट इट इन एनी ऑर्डर और एट एनी डे. तो आपके लिए जो एग्ज़ाम होगा इकोनॉमिक सर्विस का वो जून एंड में होना है नेक्स्ट ईयर, तो उससे पहले तक आपके लिए वो पूरी वैलिडिटी रहेगी. आप उस टेस्ट को कभी भी लिख सकते हो. और जो ऑप्शन का टेस्ट सीरीज होगा ये आपका साइमल्टेनियसली जो चलेगा, ये आप प्रीलिम्स तक ले सकते हो. मतलब ये 28 मई तक, 28 मई के बाद फिर से सीरीज न्यू हो जाता है एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के बाद. और इकोनॉमिक सर्विस है, आप जून में जब आपका एग्जाम है तब तक आप ले सकते हो उसको. ठीक है, यू विल बी बेसिकली गेटिंग द मॉडल आंसर एंड डिस्कशन. ठीक है, मॉडल आंसर और डिस्कशन आपको इस वाले इसमें मिल रहा है. दैट मीन्स एग्जैक्टली क्या लिखना था आपको. ठीक है, वो आपको लिख के देंगे. एंड यू विल बी नॉट गेटिंग ओनली मॉडल आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन जो टेस्ट के अंदर है. टेस्ट के अलावा बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई सारे टेस्ट सीरीज हो गए, तो वो पूल ऑफ क्वेश्चन तो हमारे पास ज़्यादा है. वी विल बी शेयरिंग मेनी आंसर विथ यू. ठीक है,
So if you are able to prepare a larger pool, let us say if you are able to prepare an answer of around 600 to 700 question, 600 to 700 क्वेश्चन कह रहा हूँ, दो साइड में भी अगर आंसर उसका मिल रहा है, मतलब मोर देन 1000 पेज का तो रिटन आंसर है आपके पास, उस पूल से ही क्वेश्चन आने हैं. सो यू नो दैट पूल, क्वेश्चन भी आपको पहले से मालूम है, इट इज ऑल आपने उसको कितनी बार प्रैक्टिस किया है और कितनी बार लिखा है. दैट विल कम डाउन टू दैट पॉइंट. वो मैटर नहीं करेगा कि कौन सा क्वेश्चन नया आ गया, नया तो हमेशा आएगा, उससे सिलेक्शन नहीं होना है. सिलेक्शन होगा जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आज आपको मालूम है, जो नॉन डोमेन के अंदर अवेलेबल है, उसी में से क्वेश्चन आने हैं. मेजॉरिटी क्वेश्चन वहीं से आना है, बट आप उसको कितनी बार पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो और कितनी बार लिखते हो, दैट विल डिटरमाइन योर सिलेक्शन. ठीक है, तो डोंट जस्ट रन बिहाइंड द न्यू क्वेश्चन. ये नया आ गया तो उसके पीछे चले गए, वो नया आया उसके पीछे चले गए. वो तो हर बार नहीं आएगा. यूपीएससी को आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यू कैन से ओके अब मैंने सारा कवर कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए. वो तो नए क्वेश्चन हमेशा पूछते रहेंगे. बट हमारा काम है बेसिकली जो नॉन सोर्सेज है, नॉन बुक्स हैं, जो नॉन कंटेंट है, उसको पहले प्रिपेयर कर लेना. देन इफ यू हैव टाइम देन गो फॉर दैट. ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? यहाँ तक आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द अप्रोच एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द कंटेंट पार्ट. ठीक है, तो जस्ट टू रिकैप. ठीक है, पेपर 1 के अंदर आपका जो कंटेंट है वो एडवांस माइक्रो से स्टार्ट हो रहा है. देन इन माइक्रो देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स: Marshallian evaluation, distribution theories, market structure and welfare. So I will be starting with the market structure part first, the important one. ठीक है, within micro start with market structure. ठीक है, now initially some basic things. First of all, a few basic points. Since we are studying microeconomics and in micro we are studying market structure, so micro, as you know, deals with the individual unit. So when I say market, so I am not referring to marketplace where different types of goods are sold. Here market means market for a particular product. एक single product की बात हो रही है यहाँ पे. That product could be pen, that product could be book, that product could be camera, that product could be chair, but we are referring to only one product. Single product की बात हो रही है. Now that means the concept of market is product specific. Market का जो concept है वो product specific concept है. Product different हुआ तो market different हो जाएगा. So if for that particular product, if you find a single seller, then the market will be called as monopoly. If you find more than one but not large in number, there are few sellers, the market will be called as oligopoly. Oligo means few, mono is one. If there are large number of sellers, all are producing identical product, then the market is perfectly competitive. If there are large number of firms but all are producing differentiated product, then the market is monopolistic. So you are basically referring to the market for a particular product. So if there is only one seller in the market, then the market is monopoly. If you find few sellers, I am not quantifying, but more than one but not large in number, then the market is oligopoly. If the market is characterized by large number of firms all producing same good, then it is perfectly. If there are large number of firms but they are producing differentiated product, then the market is monopolistic. So we have to basically cover all 4 market. We will be covering monopoly, we will be covering oligopoly,
We will cover perfect competition and monopolistic competition. ठीक है, तो ये 4 different form of market है: monopoly, perfect competition, oligopoly and monopolistic competition. So the concept of market is basically product oriented, product specific है. ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा हमेशा. Now before starting with any specific form of market, just few basic points related to any market. मार्केट के अंदर जो भी फर्म है, चाहे सिंगल फर्म हो, मल्टीपल फर्म हो, लार्ज नंबर ऑफ फर्म हो, they have to decide 2 things. One, how much quantity they will produce and at what price they will sell that quantity. 2 things: how much quantity they will produce, how much quantity का मतलब कि how much output they will produce, and at what price those quantity will be sold in the market. So output and price determination की बात होती है, price output determination होता है. I repeat, फर्म का पर्पस होगा to produce that much output where their own profit get maximized. So firm will produce how much output? Firm will always produce that much output where their own profit get maximized. And at what price they will sell? That will depend upon the market in which they are selling. किस प्राइस पे वो सेल करेंगे वो डिपेंड करेगा मार्केट कौन सा है. If they are part of perfectly competitive market, then the price will be different. If they are part of monopolistic competitive market, then price will be different. If they are part of oligopoly, then price will be different. If they are monopolist, then price will be different. So that price will depend upon market form. But how much output they will produce in any form of market, the firm will always produce that much output where their own profit get maximized. So we have to know first of all the profit maximizing condition. Okay, so I will write the first basic point here is a profit maximizing condition. Profit maximizing condition. ठीक है, जरा कुछ चीजें ध्यान से लिखें. When we have to calculate profit, so as you know, profit is difference between a revenue and cost. Total revenue minus total cost. Profit is difference between revenue and cost. Suppose we want to calculate profit for the institute. So how to calculate profit? A revenue minus cost. And what is revenue? Number of students multiplied by the fees, that will be the revenue. So revenue is basically price multiplied by quantity that you sold. यहाँ से माइनस करेंगे कॉस्ट. कॉस्ट के इनफैक्ट 2 कंपोनेंट होंगे. वन कॉस्ट विल बी फिक्स्ड, और फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता. तो फिक्स कॉस्ट क्या हो गया यहाँ पे? रेंट हो गया फिक्स कॉस्ट. नंबर स्टूडेंट ज़्यादा हो या कम हो, इट डज नॉट अफेक्ट द रेंट. सो रेंट विल बी द फिक्स कॉस्ट. व्हाट विल बी वेरिएबल? Variable will be basically, let us say, electricity bill. If there are more lectures here, more number of classes, electricity will be more. So that will be a variable part. वो quantity का function हो जाएगा. तो cost के 2 component है, just remember that. But अभी वहाँ पे division नहीं करना. Total cost has 2 parts. One is fixed cost, other is fixed does not depend upon quantity. Variable depends upon quantity. So price multiplied by quantity minus total cost, that will be profit. अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा से, प्रॉफिट को पाई के सिंबल से डिनोट किया. तो प्रॉफिट इज इन फैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट. तो हमने कोई इक्वेशन लिख दिया टी आर माइनस टी सी, वो गैप हो गया प्रॉफिट. इसको मैक्सिमाइज करना है. तो मैथमेटिकली अगर कोई फंक्शन गिवन है उसको मुझे मैक्सिमाइज करना हो, तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 और सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाना चाहिए, तो वो वैल्यू मैक्सिमाइज होगी. आपको इसकी जरूरत कहीं पड़नी नहीं है, बट जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए रखिएगा.
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, सेकंड नेगेटिव आना चाहिए। तो प्रॉफिट के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, बट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्या निकाल रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट के फंक्शन को आउटपुट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो वी आर डिफरेंशिएटिंग प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट और क्वांटिटी। सो यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस रेवेन्यू with respect to quantity, similarly differentiating cost with respect to quantity। ठीक है, आप डायरेक्टली डेल्टा भी लिख लो, उससे कोई इशू नहीं होता। चेंज, ये हो गया चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, और ये चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। नाउ चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल? Marginal means additional. So marginal revenue is additional revenue due to additional quantity. Marginal cost is additional cost due to additional production. Marginal utility is additional utility due to additional unit of consumption. Marginal product is additional product due to additional labor. So marginal, when you differentiate total, basically in economic language you get marginal. So differentiating total I get marginal revenue, similarly differentiating total cost I will get marginal cost. So MR minus MC equal to 0, फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे। MR minus MC equal to 0 means marginal revenue must be equal to marginal cost. Marginal revenue must be equal to marginal cost. MR must be equal to MC. Marginal revenue must be equal to marginal cost. So when MR is equal to MC, the profit get maximized. Profit maximizing condition, तो आप आंसर में जब लिखोगे तो सिंपली क्या लिखना है, the firm will always produce that much output where profit get maximized, and the profit maximizing condition is first MR equal to, आपको ये सब लिखना नहीं आंसर में, आपको सिर्फ याद रखना है MR equal to MC. So first differentiation equal to 0. किसी टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो याद रखिएगा उसका स्लोप आ जाता है, मतलब चेंज। तो चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी मींस स्लोप ऑफ टीआर। स्लोप ऑफ टीआर इज एमआर। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट इट सेकंड टाइम यू विल गेट स्लोप ऑफ एमआर, फिर एमआर का स्लोप आ जाएगा। तो मेरा सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव मींस डिफरेंशिएटिंग एमआर विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी माइनस डिफरेंशिएटिंग एमसी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ये नंबर नेगेटिव आना चाहिए। अब बताओ ये कंप्लीट वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? जब नेगेटिव वाला नंबर बड़ा हो। बट डिफरेंशिएटिंग एमसी का मतलब यू गेट स्लोप ऑफ एमसी। सो यू बेसिकली राइट दैट स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो आपको नोट में सिर्फ याद है एक ना, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होता है व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड सेकंड स्लोप ऑफ एमसी मोर देन स्लोप ऑफ एमआर, जिसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। बट वो लेमैन लैंग्वेज हो गया, आप थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लिखो। अदरवाइज यू कैन राइट एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो। एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो मतलब एमसी विल बी हियर राइजिंग, इट विल कटिंग एमआर फ्रॉम बिलो, दैट मीन्स slope of MC is more than slope of MR. So profit get maximized where MR is equal to MC. अब यहाँ पे आप कहोगे ये तो ठीक है मैथमेटिकली हो गया, इसका इकोनॉमिक लॉजिक क्या है? Why profit get maximized when MR equals to MC? So the economic interpretation is that, ठीक है, अभी ये सारा मैं स्टार्ट का बेसिक बता रहा हूँ, assuming that आपने वो बेसिक नहीं पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स का। सपोज फर्म इज प्रोड्यूसिंग एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी, वन पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात हो रही है। वेदर टू प्रोड्यूस दिस क्वांटिटी और नॉट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। वन, व्हेन यू प्रोड्यूस दिस क्वांटिटी इट विल ऐड टू रेवेन्यू। इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करके सेल करेंगे तो रेवेन्यू में एडिशन होगा, और इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट के अंदर भी एडिशन होगा। एडिशन टू कॉस्ट को क्या बोलेंगे? एडिशन टू कॉस्ट ड्यू टू एडिशनल क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट।
तो ये जो एडिशन टू कॉस्ट है वो हो गया मार्जिनल कॉस्ट. एडिशन टू रेवेन्यू, तो इफ marginal revenue is 15 and marginal cost is 10, it means what? If you produce this quantity, it will add 15 to the revenue and 10 to cost. So is it profitable to produce this quantity? Yes, it is profitable. It will add 5 in your profit. If you take the to decide the second quantity, again the same logic. It will be addition to revenue, addition to cost. That will be MR and this will be MC. Now suppose marginal revenue is 12 and marginal cost is 11 for second unit. So it will, that means producing second unit will add 12 to revenue and producing this unit will add 11 to cost. So how much to it is adding to profit? 1 रुपये का प्रॉफिट तो ऐड हो रहा है ना. तो पहले पे मुझे 5 का प्रॉफिट मिला, सेकंड पे 1 का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल मिला के प्रॉफिट क्या हो गया? 6 का हो गया. सो इट इज स्टिल बेटर टू प्रोड्यूस दिस क्वांटिटी. तो हम क्वांटिटी कब तक प्रोड्यूस करते रहेंगे? सो लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, इट इज प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस. सो इफ इट इज प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस दैट क्वांटिटी, इट मीन्स क्वांटिटी विल इंक्रीज. इफ मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन, अगर कॉस्ट का एडिशन ज्यादा हो रहा हो तो अनप्रॉफिटेबल है उस यूनिट को प्रोड्यूस करना, और अनप्रॉफिटेबल का मतलब है क्वांटिटी विल रिड्यूस. सो क्वेश्चन इज दिस क्वांटिटी विल कंटिन्यू टू चेंज टिल MC becomes equal to MR. ये क्वांटिटी कब तक चेंज होगी? जब तक MR और MC इक्वेट नहीं हो जाते. सो फर्म विल ऑलवेज कंटिन्यू टू चेंज इट्स प्रोडक्शन सो लॉन्ग एज MR becomes equal to MC. So marginal revenue must be equal to that marginal cost. MR must be equal to MC होना चाहिए. ठीक है. ये जब theoretical when we will be explaining, I will be dictating all these things. अभी आप स्टार्ट में से बेसिक पॉइंट समझिएगा. मतलब रीजन समझना है कि why we are writing profit maximizing condition as MR equal to MC and slope of MC greater than slope of MR. Done. This will be your first important part. Remember, जो पॉइंट आप यहाँ लिख रहे हैं, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मार्केट. आप ये नहीं पूछोगे सर मोनोपोली में करना क्या करना है, या परफेक्ट कंपटीशन में क्या करना है, ओलिगोपोली में क्या करना है. फर्म इन एनी मार्केट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ओनली व्हेन MR इज इक्वल टू MC एंड स्लोप ऑफ MC ग्रेटर देन. सो ये जो आर्गुमेंट है इसका मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर कोई लिंक नहीं है कि मोनोपोली में अलग होगा, मोनोपोलिस्टिक में अलग होगा. इन एनी फॉर्म ऑफ मार्केट यू हैव टू follow this. So you have to remember this point first. Clear? Now second basic point. I write equation of profit again. In place of revenue, write price into quantity. Remember, this price is always equal to average revenue. So it is average revenue into quantity. Why so? ऐसा क्यों होता है? टोटल रेवेन्यू जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? टोटल रेवेन्यू इज व्हाट? प्राइस इनटू क्वांटिटी. सो व्हेन यू कैलकुलेट एवरेज, मतलब पर यूनिट निकालना है, तो हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे. टोटल रेवेन्यू का मतलब हो गया P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू. तो क्यू तो कैंसिल आउट हो जाना. तो एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू, तो आप जहाँ पे AR लिख रहे हैं उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, और किसी भी मार्केट में ऐसा ही लिखना है. प्राइस और AR बोथ आर वन एंड सेम थिंग. That is why average revenue curve is also called as the demand curve, because when you draw the demand curve, you write price on the axis. But whether you write price or AR, the curve will remain same. So average revenue curve is called demand curve. Just as we calculate TR by multiplying AR into quantity, similarly, how you can calculate total cost?
अप्लाई करो कंसेप्ट को. एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी इज टोटल रेवेन्यू. एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इज टोटल कॉस्ट. So it is average cost into quantity is total cost. Quantity common ले लिया. In bracket you write AR minus AC. AR minus AC. ये प्रॉफिट का इक्वेशन है. प्रॉफिट इज क्वांटिटी इनटू AR minus AC. Now let's focus here. How to find this quantity? अभी कैसे, पहले मार्केट कोई भी हो, फर्म कितनी क्वांटिटी बनाएगा जहां उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. सो व्हेन यू इक्वेट एमसी विथ एमआर यू विल गेट अ क्वांटिटी. वो एक क्वांटिटी है. यू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी बाय इक्वेटिंग एमआर विथ एमसी, सो यू विल गेट दैट क्वांटिटी. बट क्वेश्चन इज द टर्म इन ब्रैकेट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, कैन बी जीरो ऑल्सो. तो इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए तो आप एमआर और एमसी इक्वेट कर दोगे. बट जो ब्रैकेट में टर्म है यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है. नाउ इफ नंबर 1, इफ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ध्यान देना जरा. इफ AR इज इक्वल टू AC तो ये नंबर 0 हो गया, तो प्रॉफिट 0. नो प्रॉफिट नो लॉस. सो व्हेन देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, when AR equal to, and in place of AR you can write, so price equal to AC means no profit no loss. प्राइस और AR एक ही बात है. तो जब प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा then there will be no profit no loss is known as break even point. ये फर्म का ब्रेक इवन पॉइंट होता है. नो प्रॉफिट नो लॉस. No profit, no loss is break even point. Or you can see when we say there is no profit, no loss, firm is making basically normal profit. जब no profit भी होता है वहां भी एक profit है. कौन सा profit है वो? Normal profit. But what is the idea of normal profit? इसे normal profit कहते हैं. भाई जब कह रहे हो कि no profit है तो फिर profit कौन सा हो गया? नो प्रॉफिट में भी प्रॉफिट है, बट वो प्रॉफिट नॉर्मल होता है. इन द सेंस, उस एग्जांपल को आप ऐसे समझ सकते हो. यहां देखिए, सपोज टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वी आर यूजिंग लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ये 4 बेसिक फैक्टर प्रोडक्शन हो गए. लेबर को पे किया वेज 50, लैंड को पे किया रेंट, कैपिटल को पे किया इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या दिया? प्रॉफिट. तो अगर मैं ये टोटल कंपोनेंट ऐड कर दूं तो ये 200 आ जाएगा. तो ये मेरा हो गया टोटल कॉस्ट. अब अगर रेवेन्यू ये भी एग्जैक्टली 200 हो तो टेक्निकली आप कहोगे प्रॉफिट क्या हो गया? 0 हो गया. रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल है. बट इवन व्हेन प्रॉफिट इज 0, ये 50 क्या है? ये तो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड है. तो दैट प्रॉफिट इज बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट. अब अगर रेवेन्यू 250 आ जाए तो एडिशनल रेवेन्यू कौन रिटेन करेगा अपने पास? अगर रेवेन्यू 200 की जगह 250 हो गया तो वो एडिशनल रेवेन्यू वो विल कीप एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसने वो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज किया है. तो वो प्रॉफिट नॉर्मल से ज़्यादा हो गया. उसको कहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट. ठीक है. तो इफ AR, second point, if average revenue is more than average cost, then there is super normal profit. वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, या फिर उसे एक्सेस प्रॉफिट कह सकते हो. Third and most important point, if average revenue is less than average cost, then what will happen?
ये AR कम है, AC ज्यादा है, ये नेगेटिव हो गया. नेगेटिव प्रॉफिट मीन्स देयर इज लॉस. Now question is, if there is loss for a firm, then what will be the behavior of firm? If there is loss for a firm, it will depend. Firm may shut down, may continue to operate. ठीक है, so when it will shut down and when it will continue to operate. So if there is loss, remember in the case of loss there are two possibilities. In the case of loss there are two possibilities. One, firm may shut down or firm may continue to operate. Firm may continue to operate or firm may shut down. Now that decision depends upon fixed cost or variable cost. दो आंसर नहीं आने चाहिए, एक ही आंसर सही होना. It depend upon fixed or variable. Your revenue must at least cover what? Your revenue must at least cover variable. फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी इनकर्ड हो गया है, उससे डिसीजन नहीं होता है प्रोडक्शन का. शट डाउन करेंगे तो भी वो कॉस्ट वही रहेगा. वेरिएबल कॉस्ट दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय योर डिसीजन, वो वेरिएबल है. शट डाउन कर दिया तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगा, फिक्स कॉस्ट तो तब भी लगना है. सो वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट टू प्रोड्यूस, दैट डिपेंड्स अपॉन वेदर फर्म इज एबल टू कवर वेरिएबल कॉस्ट और नॉट. सो फर्म का डिसीजन शट डाउन का होता है. फर्म विल प्रेफर टू शट डाउन. रिमेंबर, फर्म विल प्रेफर टू शट डाउन इफ प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, or firm will continue to operate if price is greater than average variable cost. Firm will shut down if price is less than ABC. Firm will continue to operate if price is greater than average variable cost. Price greater than average variable cost. That point will be called a shutdown point. जब इक्वल हो जाएगा. That will depend upon the behavior of firm. May or may not, दोनों आर्गुमेंट लिखते हैं, but tendency is to continue. इसको याद रखने का सिंपल पॉइंट है. Firm will continue to operate only when firm is having operating profit. Firm operate तभी करता है जब firm को operating profit मिलता है. And what is the idea of operating profit? Operating profit is revenue minus total variable cost only. Operating profit is revenue minus variable cost only. जब हमने ऊपर प्रॉफिट निकाला है तो टोटल कॉस्ट माइनस किया, वेरिएबल और फिक्स दोनों माइनस किया, और यहाँ क्या माइनस कर रहे हैं? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं. If operating profit is positive, remember this term can be positive only when TR is more than TVC. पॉजिटिव होगा ओनली व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इफ यू डिवाइड बोथ साइड विथ क्वांटिटी, व्हाट यू विल गेट? व्हाट इज टीआर बाय क्यू? एवरेज रेवेन्यू, व्हिच मींस प्राइस. एंड व्हाट इज टीवीसी बाय क्यू? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो टीआर अपॉन क्वांटिटी इज बेसिकली प्राइस ग्रेटर देन एबीसी. तो पी ग्रेटर देन एबीसी विल मीन ऑपरेट करने में प्रॉफिट हो रहा है, सो इट इज बेटर टू ऑपरेट. और P लेस देन एबीसी हो जाए तो ऑपरेटिंग लॉस हो गया. ऑपरेटिंग लॉस है, दैट मीन्स इफ यू आर कंटिन्यूइंग देन देयर विल बी ऑपरेटिंग लॉस. यू कैन प्रिवेंट दैट ऑपरेटिंग लॉस बाय नॉट ऑपरेटिंग. सो व्हेन फर्म विल शट डाउन? फर्म विल शट डाउन व्हेन प्राइस इज लेस देन ABC, and firm will continue if price is greater than ABC. So what is exactly shutdown point? But ABC is not a constant number. Shutdown point कौन सा हुआ? अगर आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो इनफैक्ट यू शेप होगा. ये तो अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग होते हैं. तो विच वैल्यू ऑफ ABC is shutdown point?
द मिनिमम है ये वाला पॉइंट। प्राइस अगर इसके बराबर है then this price is basically called as shutdown price. Shutdown price is equal to minimum of average variable cost. Shutdown price is minimum of ABC. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो शटडाउन प्राइस है। मतलब प्राइस अगर किसी रीजन से इसके नीचे आ जाए देन हाउ मच इज प्रोडक्शन, जीरो। ठीक है, तो अब आप कभी इस फॉर्म का अगर डायग्राम बनता है तो उसको रिलेट कर सकते हो। कभी कभी बुक के अंदर जैसे सप्लाई कर्व वगैरह स्टार्ट करते हैं और सप्लाई कर्व आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट इफ यू स्टार्ट सप्लाई कर्व फ्रॉम हियर। मान लेते हैं यहाँ पे सप्लाई कर्व मैंने स्टार्ट किया और यहाँ का जो पॉइंट है वो लिख दिया 5, तो हाउ टू इंटरप्रेट दैट सप्लाई कर्व। इफ प्राइस इज लेस देन 5 हाउ मच इज सप्लाई, 0, 5 0 लिखे। जो 5 से स्टार्ट किया इसका मतलब 5 के नीचे सप्लाई नहीं होगी, तो दैट 5 मस्ट बी द शटडाउन प्राइस। उसके नीचे तो शटडाउन हो गया, तो कोई सप्लाई होनी ही नहीं है। तो आप ग्राफ कभी ड्रॉ करते हो तो रिलेट करना सीखना कि हाउ यू कैन प्रेजेंट इट। ठीक है, तो शटडाउन प्राइस इज बेसिकली द मिनिमम ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब जो भी लिखा था उसको एक बार दोबारा देखिए। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया हमने प्रॉफिट निकालने के लिए, और रेवेन्यू की जगह P इंटू Q लिखा है। एवरेज रेवेन्यू इज प्राइस, स्टेप प्राइस की जगह AR लिखा है। सिमिलरली एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी किया टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट का इक्वेशन हो गया Q इंटू AR माइनस AC। दिस क्वांटिटी यू कैन कैलकुलेट बाय इक्वेटिंग MR विथ MC, एंड AR माइनस AC कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो। जीरो होने पे क्या बोलना है, नॉर्मल प्रॉफिट, पॉजिटिव होने पे सुपर नॉर्मल, और नेगेटिव होने पे लॉस हो गया। लॉस में फर्म may ऑपरेट और may not ऑपरेट, द डिसीजन डिपेंड अपॉन whether price is more than variable cost or less than variable cost, and the shutdown price is equal to the minimum point of average variable cost. So up to this is basically the basic जो यूज करेंगे हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के। So even if a student is not knowing about the basic part of माइक्रो और मार्केट, तो ये इंफॉर्मेशन है जो अप्लाई करना, यूज करना है। And this will remain common in all form of market, in monopoly, monopolistic, oligopoly as well as monopolistic, perfect competition। ठीक है, कहाँ पे हमने फिक्स कॉस्ट लिया नहीं है, जीरो क्यों हो गया, जीरो नंबर तो होगा। हमने प्रॉफिट को इंटरप्रेट किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं कह रहे हैं। फिक्स कॉस्ट तो है बट उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करते समय हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, वेरिएबल कॉस्ट कर रहे हैं, बिकॉज द डिसीजन वेदर टू ऑपरेट और नॉट डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो होगा ही, बट द डिसीजन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिक्स कॉस्ट। बट रिमेंबर, ये शट डाउन का मतलब ये नहीं होता यू आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। शटडाउन इज बेसिकली टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द एक्टिविटीज, टेम्पररी सस्पेंशन एक्टिविटीज का। तो कोविड के समय क्या शटडाउन हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ, क्लास नहीं हो रही है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो रह गया ना, रेंट वाला पार्ट तो रह गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो गया, बाकी एक्सपेंसेस कम हो गए, बट रेंटल पार्ट तो रिमेन रह गया। बट जब हम कहते हैं फर्म एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, उसका मतलब क्या होता है, ऑल टुगेदर मार्केट से ही क्या हो गया, चला गया। शटडाउन इज वेयर मीन्स टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन, प्लांट नहीं बंद हुआ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मारुति इज हैविंग डिफरेंट प्लांट, अगर ओवरऑल डिमांड कम हो जाए कार का, तो किसी पर्टिकुलर प्लांट में वो प्रोडक्शन क्या कर सकता है, कम कर दे या बंद कर दे। बट इसका मतलब थोड़ी कि प्लांट ही हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया, वो टेम्पररी उस ईयर के लिए बंद हो गया। तो शटडाउन बेसिकली डिसीजन टेम्पररी डिसीजन होता है। ठीक है, now given this we can start with the first form of market which is perfect competition।
Perfect competition. Start first of all with the features of this market. So remember, no one is going to ask what are the features of perfect competition, but you must know them because we have to apply that. It is characterized by large number of sellers and buyers. Perfect competition market is characterized by large number of seller and buyer. That means when we are studying this market is characterized by, इस market के अंदर there are many firms. मार्केट के अंदर बहुत सारे फर्म हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर का सिग्निफिकेंस क्या होता है? अगर आपसे ये कहा है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. हाउ प्राइस विल बी डिटरमाइन इन द मार्केट? कॉम्पिटिटिव मार्केट का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? By demand and supply, market forces. So demand and supply will determine basically the price. So given this demand curve and supply curve, price will be determined by the intersection point. Suppose I take that price as 10. ठीक है, तो मार्केट का प्राइस डिसाइड हो गया 10 पे. ये राइट साइड जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एक सिंगल फर्म का डायग्राम है और ये मार्केट का है. राइट साइड जो डायग्राम है वहां पे जितने डॉट बना रखे हैं उसमें किसी पर्टिकुलर फर्म का वो डायग्राम है, वन सिंगल फर्म की बात हो रही है. तो कैन दैट सिंगल फर्म अफेक्ट द मार्केट प्राइस? आंसर इज नो. सिंगल फर्म एक्सेप्ट द प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट. सो फॉर दैट सिंगल फर्म प्राइस विल रिमेन सेम. सिंगल फर्म के लिए प्राइस सेम रह गया, जरा यहाँ ध्यान देना. सिंगल फर्म के लिए प्राइस 10 रह गया. At that price, single firm can sell 1 unit, 2 unit, 3 unit or as much unit as it can. प्राइस उसके लिए कॉमन रह गया, बट उस सेम प्राइस पे वो क्या कर सकता है? 1 unit, 2 unit, 3 unit or 4 unit. So what will be the total revenue? 10, 20, 30 and so on, 40, 50. What will be the marginal revenue? कितनी बार एडिशन हो रहा है, कितने का एडिशन हो रहा है? हर बार एडिशन तो 10 का हो रहा है. मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशन टू रेवेन्यू. सो एडिशन टू रेवेन्यू एवरी टाइम इज ऑफ 10. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो प्राइस का कॉलम है और जो एमआर का कॉलम है, ये दोनों क्या आएगा? सेम आएगा. मतलब जो प्राइस की वैल्यू होगी वही एमआर की वैल्यू भी होगी. तो ये जो लाइन हमने बना रखा है 10 पे, ये प्राइस भी है, मतलब एआर भी है, और यही एमआर भी है. ये दोनों एक ही लाइन, इसलिए कहते हैं फर्म इज अ प्राइस टेकर. फर्म प्राइस टेकर होता है. फर्म एक्सेप्ट द प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट. फर्म का प्राइस पे कोई कंट्रोल, तो फर्म को फिर क्या डिसाइड करना है सर? फर्म को सिर्फ एक ही डिसीजन लेना है फिर, एट दैट प्राइस हाउ मच क्वांटिटी टू सेल एंड हाउ मच क्वांटिटी फर्म विल सेल. इट विल ऑलवेज सेल दैट मच क्वांटिटी वेयर प्रॉफिट गेट, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन इज एमआर इक्वल टू एमसी. तो जहां पे एमसी एमआर का इंटरसेक्शन होगा दैट विल फिक्स द क्वांटिटी. क्लियर? तो फर्स्ट फीचर इज बेसिकली दैट लार्ज नंबर ऑफ सेलर. जस्ट मेन जो पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है उसको नोट कर लेना रजिस्टर में. A competitive market is characterized by large number of firms. So the implication of this feature is that
Implication of this feature is that a single firm act as price taker. A single firm act as price taker. A single firm act as price taker. And average revenue is equal to marginal revenue. AR equal to MR. AR equal to MR. The second feature है homogeneous product. Homogeneous product. That means all firms here in this market. Market में जितने भी firm है, all are selling same good, no difference. So buyer cannot differentiate between the product produced by one firm and the product produced by the other firm. All are producing same good, identical in all respect. Any example of identical product? एग्रीकल्चर गुड में तो बहुत वेरिएशन होता है, वहाँ भी होता है. प्रीमियम ले लो, इंडियन ऑयल का ले लो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम ले लो, वहाँ भी वोल्टेज का वेरिएशन होता है. गुड क्वालिटी पुअर क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं. नहीं, प्रोडक्ट लेंगे ना, मैंने कहा स्टार्ट में इसलिए बताया था. इफ यू आर चूजिंग मार्केट, मार्केट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक. से प्रोडक्ट क्या बात करें, एप्पल में तो इतनी वैरायटी होती है. अभी नीचे जाके देखो, 100 रुपये का भी है और 500 रुपये का भी है. कोई प्रोडक्ट नहीं होता. डोंट थिंक कोई प्रोडक्ट नहीं होता. कोई प्रोडक्ट नहीं होता जो होमोजेनस हो. इसलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मिथ, इमेजिनरी मार्केट है. We are just imagining a situation where there are large number of firms, all firms produces same good, then what will happen? So it is just an imaginary market, is a myth. Product homogeneous नहीं होता है. But the second question you can ask कि अगर ऐसा होता नहीं है तो पढ़ते क्यों? अगर प्रोडक्ट ये मार्केट होता ही नहीं है तो इसको पढ़ने का लॉजिक क्या है? एक लॉजिक तो सिंपल है, क्वेश्चन आता है इसलिए पढ़ते हैं. दूसरा लॉजिक बता जो ज़्यादा रेलिवेंट है. Remember, जो perfect competition market, it is supposed to be an ideal form of market. Market are basically imperfect. All are imperfect market जो exist करते हैं. But किस market में कितना imperfection है वो कैसे पता चलेगा? जब हमें ideal पता हो, ideal से कितना vary कर रहा है. तो perfect competition से monopoly कितना vary किया, monopolistic कितना vary किया, oligopoly कितना vary किया. So you must know that a reference point, ideal. So we start with that ideal, although it does not exist. So if there will be a market which is characterized by a large number of sellers, all producing homogeneous product, there is free entry and exit plus other assumptions are there, then we call that market as perfectly competitive market. So if I say that product is homogeneous, it means it is identical in all the respect. हर respect में identical का मतलब है as a buyer we cannot differentiate between the output produced by one firm and the output produced by the other firm. Second part में लिखो. In this market, the output produced by large number of firms, the output produced by large number of firms, the output produced by large number of firms are identical in all respect, are identical in all respect, are identical in all respect. It means buyer cannot differentiate between, buyer cannot differentiate between, buyer cannot differentiate between output produced by, buyer cannot differentiate between the output produced by, output produced by different firms,
output produced by different firms. Third important feature is a free entry and exit. Free entry and exit. Free entry and exit. तो मार्केट के अंदर जो एंट्री और एग्जिट है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सो इफ देर आर मेनी फर्म्स इन द मार्केट, सपोज इफ द एग्जिस्टिंग फर्म इन मार्केट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. तो पहली बात, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. So if firms make that profit, new firms will enter into the market. And what will happen because of that? जब नए फर्म एंटर करेंगे मार्केट में तो बताना क्या चेंज हो जाएगा. इस मार्केट में नए फर्म एंटर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फर्म बढ़ जाएंगे तो सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा. एंड द मोमेंट द सप्लाई विल शिफ्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्राइस? तो कब तक घटता रहेगा? जब तक एंट्री होती रहेगी. तो इफ देयर इज अ सुपर प्रॉफिट देयर विल बी एंट्री. And if there is loss, तो प्राइस लेस देन एसी होता है. एंट्री होने से ये प्राइस घट रहा था, तब तक घटता रहेगा जब तक प्राइस एसी के बराबर ना हो जाए. और लॉस होने पे फर्म्स विल लीव दैट मार्केट. सो वन फर्म विल लीव दैट मार्केट, द सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, प्राइस विल स्टार्ट राइजिंग. सो इन द केस ऑफ लॉस, फर्म विल लीव and price will start increasing. Therefore, in long run, remember, price cannot be more than average cost, it cannot be less than average cost. So in long run, price will always be equal to average cost. But price equal to average cost means firm make normal profit. तो फ्री एंट्री और एग्जिट assumption का मतलब होता है कि लॉन्ग रन में फर्म विल बी हैविंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. मींस इन लॉन्ग रन प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगा. एंड किसी डिफरेंट मार्केट के अंदर भी, इफ एनी मार्केट हैव दिस फीचर, देन इन दैट मार्केट ऑल्सो इन द लॉन्ग रन दे विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज यू फाइंड दिस फीचर इन मोनोपोलिस्टिक ऑल्सो. तो वहाँ भी फ्री एंट्री और एग्जिट होता है. तो वहाँ भी लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा. ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर बेसिकली आप याद रखो. इसमें एक लाइन ऐड करना है इसमें. ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट, competitive firm will earn only normal profit in long run. Competitive firm will earn only normal profit in long run. Only normal profit in long run. ठीक है. देखो ये तीन फीचर बेसिकली आप याद रखो जो यूज करेंगे हम एक्सप्लेन करते हैं. ऑल्दो मार्केट के और भी फीचर हैं, लाइक परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर है, बट दोज आर जस्ट वो इंफॉर्मेशन के लिए. दीज थ्री फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट वन, जो किसी क्वेश्चन के लिए, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन का नेचर अब हो ही नहीं कि आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. बट सिंस वी हैव टू स्टडी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, so we must know the important features. So important feature is large number of seller, because of that firm is price taker, homogeneous product and free entry and exit. अब इसको आप कंबाइन करके प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन कर लेंगे. प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन एंट्री एग्जिट की वजह से. तो ऐसा नॉर्मल में से क्या हो जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं होगा तो आप लॉन्ग रन तो बेसिकली एक कंसेप्ट है ना. फर्म को एक्चुअल में होता तो प्रॉफिट या लॉस ही है, बट वहाँ पे चेंज होता रहेगा. प्राइस विल कंटिन्यू टू चेंज. और चेंज कब तक होता रहेगा क्वेश्चन ही बनता है कि टिल व्हेन इट विल कंटिन्यू टू चेंज.
ये चेंज तब तक होता रहेगा जब तक प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर, बट व्हाट विल बी दैट पीरियड वी डू नॉट नो. लॉन्ग रन कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर. इसलिए समटाइम्स क्वेश्चन का नेचर होता है कि इफ firms know that in the long run they will earn zero profit, normal profit, why they enter into the market? Knowing that in the long run their profit will reduce to zero. We all know that our profit will reduce to zero in the long run, but long run का defined नहीं है ना, ये तो idea है, concept है. तभी केन्स ने बोला कि in long run की बात करना ही बेकार है. We all are dead in long run. We know that we will die someday, but we live today. What matters is today. What matters is the short run. What is immaterial is the long run. What will happen in the long run. But this we are moving towards that. So वो movement है. Long run का description actually में होता है. Price output determination. ये सब पुराने बुक में रह गया. प्योर और परफेक्ट में डिफरेंस, जहाँ जहाँ परफेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगा ना, लाइक परफेक्ट नॉलेज, तो प्योर कंपटीशन के अंदर वो असम्पशन नहीं है जो उससे प्योर कंपटीशन थी. मतलब लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म होंगे, होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा, फ्री इंटरनेट होगा, बट प्योर परफेक्ट नॉलेज, दैट इज बायर एंड सेलर मस्ट हैव द सेम नॉलेज. तो वो बाद की फीचर ऐड किए गए. देन द मार्केट इज नाउ कॉल्ड एज perfect competition rather than pure competition. But now price output determination में ग्राफिकली चीज़ों को अब एक्सप्लेन करा. अभी तक जो लिखा था वो न्यूमेरिकली लिखा था. फर्स्ट पैराग्राफ लिखो इसमें. द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम. राइट डाउन फर्स्ट. द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम. द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम when it maximizes its profit. The firm is in equilibrium when it maximizes its profit. When it maximizes its profit, which is defined as difference between, which is defined as difference between TR and TC, which is defined as difference between total revenue and total cost. So sub given that normal rate of profit is given that normal rate of profit is included in cost of firm, is included in cost of firm, included in cost of firm, after comma, profit is above the normal rate of return. Profit is above the normal rate of return. Profit is above the normal rate of return. Next paragraph. Profit is above the normal rate of return. Given that normal rate of profit is included in cost of firm, after comma, profit is above the normal rate of return. Profit is above the normal rate of return. Next paragraph. Equilibrium of firm may be shown graphically. Equilibrium of firm may be shown graphically. Equilibrium of firm may be shown graphically. May be shown graphically in two different ways. In two different ways. First, total revenue and total cost approach. Total revenue and total cost approach. And second, marginal revenue and marginal cost approach. Marginal revenue and marginal cost approach. Marginal revenue and marginal cost approach. तो दो अप्रोच हैं प्रॉफिट को शो करने के लिए. One by one. So first we explain this TR and TC approach.
फर्स्ट अप्रोच इज दिस, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। जरा यहाँ पे ध्यान देना। You are marking your quantity on x-axis and revenue and cost on vertical axis। ठीक है, मुझे टीआर और टीसी ड्रॉ करना है ग्राफिकली, बट हाउ टू कैलकुलेट टीआर? प्राइस इनटू क्वांटिटी विल बी टीआर, बट फर्म इज अ प्राइस टेकर, फर्म के लिए प्राइस क्या रहना है? तो ये जो प्राइस का कॉलम आएगा वो तो उसके लिए कांस्टेंट आएगा। तो अब इसके आगे आप क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, क्वांटिटी 4 लिखोगे तो वैल्यू बेसिकली कैसे बन जाएगी? 10, 20, 30 एन। तो लाइन कैसे बननी चाहिए? स्ट्रेट लाइन, लीनियर होगा वो। ठीक है, ये बस समझाने के लिए याद रखिएगा, लाइन जब आप टीआर की लाइन ड्रॉ करेंगे देन इट विल बी स्ट्रेट लाइन, बट वह जब आंसर लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा वो व्हाई यू हैव ड्रॉन दैट स्ट्रेट। रेवेन्यू तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्म इज प्राइस टेकर इन परफेक्ट कंपटीशन, नॉट इन मोनोपोली। तो यहाँ पे तो लाइन स्ट्रेट बनाओगे आप, बिकॉज फर्म के लिए प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। सो दिस टोटल रेवेन्यू लाइन इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, व्हाट विल बी, और लाइन का स्लोप एक्चुअल में क्या होगा? लाइन स्टीप फ्लैट कुछ भी बना सकते हो आप, स्लोप डिपेंड करेगा प्राइस के ऊपर। प्राइस मोर होगा लाइन स्टीपर होगी, कम होगा फ्लैट हो जाएगी। व्हाट इज टोटल कॉस्ट लाइन? टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट होंगे, फिक्स्ड एंड व्हाट इज फिक्स? जो क्वांटिटी का फंक्शन नहीं होता है, मतलब इवन व्हेन क्वांटिटी विल बी जीरो देयर विल बी सम फिक्स कॉस्ट, तो ये अमाउंट फिक्स कॉस्ट का हो गया। एज क्वांटिटी विल इंक्रीज देयर विल बी मोर वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट की जो लाइन बनती है वो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज इन्वर्टेड एस इन शेप। टोटल कॉस्ट की जो लाइन बनेगी वो इन्वर्टेड एस। इन्वर्टेड एस होता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन लॉस है, जब हम प्रोडक्शन लॉस करेंगे तो अभी सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। टोटल कॉस्ट लाइन इज इन्वर्टेड एस इन शेप ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन प्रोडक्शन। अब मुझे आप ये बताओ, जहाँ पे टीआर और टीसी बराबर हो गया वहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा? जीरो। यहाँ पे टीआर और टीसी बराबर हो गया तो यहाँ पे प्रॉफिट जीरो हो गया। प्रॉफिट इज गैप ऑफ टीआर एंड टीसी, तो ये गैप प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ये गैप ये प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो प्रॉफिट कहाँ पे हाईएस्ट होना है? जहाँ पे गैप हाईएस्ट हो जाए। तो जहाँ भी आपको डायग्राम में गैप हाईएस्ट लग रहा हो वो गैप मार्क कर लो। ये क्वांटिटी आएगी जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सो इफ आई से ड्रॉ प्रॉफिट कर, देन व्हाट इज प्रॉफिट कर? प्रॉफिट इज जीरो हियर, इस क्वांटिटी पे जीरो है, दिस गैप इज प्रॉफिट। तो इनिशियली गैप क्या होगा? बढ़ेगा और फिर गैप कम हो जाएगा। तो हाउ विल बी द शेप? इनिशियली इट विल इंक्रीज, मैक्सिमाइज, देन डिक्लाइन। सो व्हाट इज द शेप? इन्वर्टेड यू बन जाएगा। तो प्रॉफिट का कर्व अगर आप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो प्रॉफिट का कर्व इनफैक्ट यू बन जाएगा। ये जो गैप यहाँ पे आ रहा है वो इनफैक्ट ये गैप लिया। So this is a quantity where profit is maximized, एक टर्म क्वांटिटी हो गया। ठीक है, although this approach is TR and TC approach, but can you say whether MR or MC are equal or not at this quantity? We have not drawn MR and MC, but ग्राफ से रीड कर सकते हो। I said slope of TR is MR and slope of TC is MC. Slope of TR ये MR होगा, वो तो स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट है। बट जो TC है वो नॉन लीनियर है, उसका स्लोप हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्लोप एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द प्रोसेस? टू फाइंड स्लोप एट दिस पॉइंट, you draw a tangency at that point. जो टेंजेंसी बनेगी वो स्ट्रेट लाइन होगी।
तो कहेंगे स्लोप ऑफ दैट टेंजेंसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट कर्व एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे इक्वल हो गया स्लोप। तो ये जो टेंजेंसी बन रही है और जो टीआर बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल आएंगे, इंडिकेटिंग देयर स्लोप इज सेम, विच मीन्स एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर इक्वल टू एम सी का पॉइंट होगा। ठीक है, तो बस उतना ज़्यादा आपको शो करने की जरूरत नहीं, बस आप ग्राफ को मैक्सिमाइज जहाँ पे होगा उसको प्लॉट कर देगा। Right. The total revenue curve is straight line. The total revenue curve is straight line. The total revenue curve is straight line through the origin. Total revenue curve is straight line through origin, showing that price is constant. Showing that price is constant at all levels of output. Showing that price is constant at all levels of output. So the firm is price taker. The firm is price taker. The firm is price taker, and it can sell any amount of output. Firm is price taker and it can sell any amount of output. Any amount of output at current market price. At current market price. So the slope of TR is MR. The slope of TR is MR and it is constant. The slope of TR is MR and it is constant. So under perfect competition, MR equal to AR, AR equal to price. Under perfect competition, MR equal to AR, AR equal to price. Below that, next paragraph. The total cost curve is inverted S. The total cost curve is inverted S in shape. Total cost curve is inverted S in shape due to law of variable proportion. Due to law of variable proportion. Due to law of variable proportion. So the firm maximizes profit. The firm maximizes profit when distance between. The firm maximizes profit when distance between TR and TC is maximized. Distance between TR and TC is maximized. Since TR is more than TC, so firm is earning supernormal profit. Firm is earning supernormal profit. Within bracket just mention diagram 1. Firm is earning supernormal profit. ये आपने डायग्राम 1 में दिखा रखा है, और सुपरनॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल में ये लेंथ है, गैप, एरिया नहीं, ये जो डिस्टेंस है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। बिलो दैट, नेक्स्ट पे आप। However, in short run, there could be loss. However, in short run, there could be loss for competitive firm. There could be loss for competitive firm when total cost is more than total revenue. When total cost is more than total revenue, but
firm may continue to operate despite loss, but firm may continue to operate despite loss. Firm may continue to operate despite loss. Firm may continue to operate despite loss if, कंडीशन क्या होगा लॉस में ऑपरेट करने के लिए, इफ टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. If total revenue is more than total variable cost, is more than total variable cost, because in that case firm will earn operating profit. In that case firm will earn operating profit. अब इस सिचुएशन को ग्राफ में दिखा सकते हो. लॉस में वो ऑपरेट कर रहा है, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए. तो पहली बात, जो टोटल रेवेन्यू की लाइन है उसको तो बना लेंगे पहले स्ट्रेट. टोटल रेवेन्यू विल बी दिस. ध्यान देना कंडीशन को, टीसी क्या बनाना है मुझे, ग्रेटर देन टीआर है. मतलब कंप्लीट टोटल कॉस्ट की जो लाइन होगी वो ऊपर बनेगी. टोटल कॉस्ट विल बी अबव, like this. क्लियर. प्रॉफिट है तो हम मैक्सिमाइज करते हैं, लॉस है तो मिनिमाइज करेंगे. तो जहां पे मिनिमम गैप हो, टीआर और टीसी के बीच का जो गैप मिनिमाइज हो रहा है जहां पे, वो पॉइंट पहले मार्क कर लेना. ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी होगा या लॉस मिनिमाइजिंग क्वांटिटी. टीसी ग्रेटर देन टीआर तो दिखा दिया. सेकेंड पॉइंट, टीवीसी लोअर होना चाहिए. और टीसी और टीवीसी जब आप ड्रॉ करते हैं तो याद रखेंगे टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू. इफ यू ड्रॉ टोटल कॉस्ट लाइक दिस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी जस्ट पैरेलल टू दैट, बिकॉज वो जो गैप है वो फिक्स कॉस्ट है, वो दैट विल रिमेन सेम. तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट करोगे, टोटल कॉस्ट के पैरेलल लाइन बनाओगे और इसको नीचे रखना है यहाँ पे. ये लाइन कौन सी बन गई, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन. ये वेरिएबल कॉस्ट है. अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क कर ले रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली होता नहीं. ये पॉइंट मैंने ए मार्क कर दिया, यहाँ का पॉइंट लिख दिया बी, और ये पॉइंट लिख दिया यहाँ सी. सो व्हाट इज लॉस, हाउ मच इज लॉस. लॉस हो गया ये ए बी, बट लॉस में प्रोडक्शन हो रहा है बिकॉज फर्म इज हैविंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट. And how much is that? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था, टी आर माइनस टीवीसी. तो टी आर माइनस टीवीसी ये हो गया बी टू सी. ठीक है. प्रॉफिट में आपने टीसी न्यू हो गया, लॉस के अंदर आपने ऊपर कर रखा है. तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, मतलब प्रॉफिट में जो ड्रॉन टोटल कॉस्ट लोअर. इन द केस ऑफ लॉस वो टेक इट अबव. So in the case of normal profit, just tangent. ठीक है, just tangent हो जाएगा. पहले ड्रॉ कर ले. Below that, in short run, there could be only normal profit also. There could be only normal profit also. There could be only normal profit also when total revenue is equal to total cost. When total revenue is equal to total cost. तो ऐसे केस में क्या करोगे, जस्ट टेंजेंट ड्रॉ कर लेना. टेंजेंसी का जो पॉइंट है ये क्वांटिटी प्रॉफिट मैक्सिमम.
तीनों कंडीशन क्लियर है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। ये अब पेपर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखो, मार्केट स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्विस और सिविल सर्विस दोनों में सेम क्वेश्चन आया हुआ है विदाउट चेंजिंग इवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए, 2015 का क्वेश्चन से, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन फाइंड आउट ग्राफिकली विदाउट यूजिंग एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट यूज नहीं करना, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड ग्राफिकली तीनों कंडीशन बतानी। क्वेश्चन है का विदाउट यूजिंग एवरेज, सो इफ यू आर नॉट यूजिंग एवरेज देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन, यूज टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू। तो ये तीन डायग्राम आपने ड्रॉ कर रखे, वो तीनों को ग्राफिकली सीख लेना। सेम क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्विस में पहले आया था, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। अब 10 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू जस्ट ड्रॉ 3 डायग्राम, आंसर जी लिखना है आपको। आंसर में यू विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर, आंसर लिख रहे हो आप इसका, वो घर पे जाके लिखना, बट कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? ये तो नोट्स लिखा आपने सारा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन से लिखेंगे, अ फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रॉफिट ऑफ दैट फर्म गेट मैक्सिमाइज एंड प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। फिर अब देयर आर टू डिफरेंट अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट, वन इज TRNTC, अदर इज MRNMC अप्रोच। इन दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग TRNTC अप्रोच। टोटल रेवेन्यू की लाइन स्ट्रेट क्यों बनाई है वो बताना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपने इन्वर्टेड एस क्यों बनाया वो बताइएगा, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल 3 डायग्राम फॉर नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर लॉस, लॉस में थोड़ा ध्यान से बनाओगे, एंड देन फॉर नॉर्मल प्रॉफिट। बट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट मोर मार्क्स प्रोवाइडेड यू हैव रिटन एंड प्रेजेंटेड इट वेल। ठीक है, तो इवन जो बेसिक टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चन रहता है, ये कह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेसिकली आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, नाउ इन देयर आर इनफैक्ट सेकंड अप्रोच, और जो सेकंड अप्रोच था वो MR और MC अप्रोच है, MR and MC approach. So in the MR and MC approach, you have to draw diagram for market as well as for firm. Market का diagram भी बनेगा और firm का भी। Price is determined in the market by demand and supply. Their intersection determines the price. This price will be accepted by all firms. So firm act as price taker. ये लाइन प्राइस भी है और ये MR भी है। If you draw average cost curve lower, passing through the minimum point of average cost curve, draw the marginal cost curve. Remember, marginal cost always cut average at the minimum. And what is profit maximizing condition? यहाँ से क्लास बिगिन किया था, वहां से आंसर। प्रॉफिट विल गेट मैक्सिमाइज वेयर MR इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। दो जगह इंटरसेक्शन भी हो सकते थे, अगर आपने इस MC की लाइन को यहाँ से बना लिया होता तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाता। तो MC इक्वल टू MR, दैट पॉइंट यू हैव टू मार्क फर्स्ट, ये पॉइंट। दिस विल डिटरमाइन क्वांटिटी, यहाँ से क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाएगी। प्राइस ऑलरेडी फिक्स है, so which area is revenue area? When you calculate total revenue, then total revenue is price into quantity. तो price into quantity, ये rectangle का एरिया आ जाएगा revenue, and which one is cost area, total cost, ये हो जाएगा average cost into quantity। क्वांटिटी तो ये हो गई, इस क्वांटिटी का एवरेज कॉस्ट क्या आएगा? एवरेज कॉस्ट इज दिस, यहां से मार्क कर लेंगे तो कॉस्ट का एरिया हो गया। सो विच एरिया इज प्रॉफिट एरिया? रेवेन्यू इज मोर, कॉस्ट इज लेस, सो दिस
एरिया इज ऑफ प्रॉफिट। तो अब इस डायग्राम के अंदर ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम हो गया। ये अप्रोच लेकिन अलग है, यहाँ पे हमने एवरेज यूज किया है, क्वेश्चन में लिखा था एवरेज यूज नहीं करना है, तो वहां पे आप ये डायग्राम यूज नहीं कर सकते। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, red and blue. The alternative approach is based on MR and MC. The alternative approach is based on MR and MC. The alternative approach is based on MR and MC. The profit will be maximized when following condition is satisfied. The profit will be maximized when following condition is satisfied. Following condition is satisfied. Number 1, MR equal to MC. MR equal to MC. And second, slope of MC is greater than slope of MR. Slope of MC is greater than slope of MR. ठीक है, मतलब आपने बेसिकली जो स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन किया था उसको स्किप कर जाना है, ये डेरिवेशन वगैरह शो नहीं करना। वहाँ जो कंडीशन से पाया था वो कंडीशन क्या करोगे आप, डायरेक्टली लिख दोगे। अब ये डायग्राम हो गया प्रॉफिट के लिए, क्या लॉस के लिए दिखा सकते हो डायग्राम? अब इस अप्रोच में अगर लॉस दिखाना हो तो इस अप्रोच में अगर लॉस का डायग्राम है तो लॉस में अब सप्लाई डिमांड इंटरसेक्शन से पहले प्राइस ले लेंगे। लॉस में क्या करना है, एवरेज कॉस्ट की लाइन ऊपर ड्रॉ कीजिएगा पूरा, जैसे टीसी ऊपर ड्रॉ किया था सिमिलरली। But which line you will draw below? Average cost must be above, but variable cost must be below. ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी तो दिखाना है ना, जो टीआर में फॉलो कर रहे थे वो एसी में फॉलो कर रहे हैं। एंड पासिंग थ्रू द मिनिमम ऑफ बोथ you will draw the marginal cost line. So MC equal to MR, MC equal to MR at this point. So first of all always mark that point where MR is equal to MC. वो point हमेशा पहले मार्क करोगे, वहाँ से क्वांटिटी मार्क कर लेना। So now you are knowing quantity as well as price. So you know the area of revenue. Revenue का ये एरिया है, और कॉस्ट, कॉस्ट तो ऊपर हो गया ना, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, तो अब कॉस्ट का एरिया ज़्यादा है और रेवेन्यू का एरिया कम है, तो ये एरिया अब क्या हो गया, लॉस। ये दिस एरिया इज फॉर लॉस एंड विच एरिया विल बी फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एरिया ये नीचे आ जाएगा, ये वाला, ये जो डॉटेड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए तो सपोज प्राइस कम हो रहा है, तो प्राइस के कम होने पे क्या होगा, एज प्राइस विल फॉल लॉस का एरिया बढ़ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जीरो कर लूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब जीरो हो गया फिर तो शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। तो कब तक प्रोडक्शन होता है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर हो। आप जब इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, इस डायग्राम को आप ऐसे याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। हमने बेसिकली ड्रॉ एक्चुअल में क्या है, एक एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये गैप इनफैक्ट कम होता जाएगा और इनके दोनों के मिनिमम पॉइंट से हम मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ करते हैं। जो वेरिएबल कॉस्ट के नीचे का पॉइंट है, ये वाला सेक्शन मार्जिनल कॉस्ट का, यहाँ पे कोई सप्लाई
इसलिए कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट का सप्लाई कर्व तो होता है, बट कौन सा पार्ट सिर्फ ABC के ऊपर वाला पार्ट, बिकॉज बिलो ABC दे विल बी शट डाउन, दे विल बी नो सप्लाई। सप्लाई होगा बट कहाँ पे होगा, सिर्फ जब मार्जिनल कॉस्ट ABC से ऊपर है। MC मस्ट बी ग्रेटर देन ABC, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सप्लाई कर्व। यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ, ठीक है, यहां तक का कंटेंट क्लियर है। मार्जिनल कॉस्ट ओनली द राइजिंग पार्ट ऑफ MC विच इज अबव द ABC, दैट इज ओनली द सप्लाई कर्व, वो सप्लाई कर्व कहलाता है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इटसेल्फ इज सप्लाई कर्व। ठीक है, विल स्टार्ट विद दैट पार्ट एंड जस्ट सी फाइनल क्वेश्चन हियर। डन। ये क्वेश्चन जो 2019, ये क्वेश्चन नंबर 9। अंडर कॉम्पिटिशन, दैट मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन, द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज, कॉस्ट दे रखा y स्क्वायर प्लस 1, y आउटपुट है, जैसे क्वांटिटी क्यों लिखा था वैसे क्वांटिटी को y लिखते हैं। Where y is output, derive the inverse supply curve and show how supply curve looks like. This was a compulsory question in 2019. Cost equation is given and you have to explain inverse supply curve and how supply curve looks like, that means plot करना, graph में बनाना। But under perfect competition we know that marginal cost curve is the supply curve. Marginal cost curve supply curve होता है और ये total cost का equation दिया हुआ है, तो यहाँ से marginal cost निकाल सकते हो। टोटल कॉस्ट का इक्वेशन गिवन है, टोटल कॉस्ट का इक्वेशन दे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए 2019 का ये कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, कॉस्ट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, तो 1 तो कॉन्स्टेंट नंबर हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, वाई स्क्वायर वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फ्रॉम देयर यू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉन्स्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 और वाई स्क्वायर का 2y हो गया। Therefore सप्लाई कर्व ये हो गया P इक्वल टू MC कर देना, बस P यहाँ लिखो और MC की जगह क्या लिख देंगे 2y, और इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दीजिएगा। यहाँ पे प्राइस लिखेंगे और यहाँ पे आउटपुट यानी y। बताओ लाइन कैसे बनेगी, आउटपुट 1 होगा तो प्राइस, यहाँ 1 लिखोगे तो P। So if you write here 1, you take here 2, 1 point तो ये आ जाएगा। If you take output 2, then price is 4, तो लाइन यहाँ से स्टार्ट करोगे स्ट्रेट लाइन। This will be basically the supply curve. It looks like straight line. ठीक है, बट कौन सा कर्व सप्लाई कर्व होगा, मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है। कैन वी से इट इज अबव वेरिएबल कॉस्ट, वेयर इज वेरिएबल कॉस्ट हियर? रिमेंबर इफ यू हैव टू स्कोर मोर तो थोड़ा ऐड करके बताना है, वहां पे परफेक्ट आंसर चाहिए वहां। इस टोटल कॉस्ट के इक्वेशन में दिस वाई स्क्वायर इज वेरिएबल और ये फिक्स है 1, तो वहां से मैं वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो वाई स्क्वायर दिया हुआ है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर वाई स्क्वायर वहां गिवन है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से क्या निकाल लिया हमने, देयरफॉर यू कैन कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दोगे। आउटपुट यहाँ वाई से डिनोट किया गया, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, वाई रह जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाई है, इसका मतलब इफ आउटपुट 1 वेरिएबल कॉस्ट 1, इफ आउटपुट 2 वेरिएबल कॉस्ट, इफ आउटपुट 3 वेरिएबल कॉस्ट, तो वेयर यू विल प्लॉट 1 1। यहाँ पे क्या है 1 और 2 का पॉइंट है, आपको कौन सा लेना है 1 और 1 का पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, 2 और 2 का पॉइंट इसके नीचे आ जाएगा।
तो आप 1 और 1, 2 और 2 अगर मार्क करोगे तो ये लाइन इनफैक्ट यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे बन जाएगी। ये जो लाइन बनी है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ऊपर जो लाइन बना है वो मार्जिनल कॉस्ट का है। तो कंप्लीट मार्जिनल कॉस्ट इन दिस केस इज अबव दी एबीसी। पूरा का पूरा कर ऊपर ही है ना, एबीसी तो उसके नीचे है थ्रू आउट। प्लीज वी विल स्टार्ट विद दिस, इसके डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 कि वाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज सेड टू बी द सप्लाई कर्व ऑफ फर्म। तो वी विल स्टार्ट विद सप्लाई कर्व ऑफ फर्म इन द शॉर्ट रन, then supply curve of market in the long run, and then we will go with oligopoly, then monopolistic, then monopoly. We will go according to the priority, मतलब जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो क्वेश्चन पहले टॉपिक आप पहले कवर करोगे, ठीक है। तो विल बट रिमेंबर ये जो क्वेश्चन आपको दिखाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको रिलेट करना आना चाहिए कि आज की क्लास आपने की है, तो बेस्ड अपॉन दिस क्लास यू कैन आंसर 2 क्वेश्चन। एक है क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन जैसे पहले किया, ठीक है। इन एवरी लेक्चर ये क्वेश्चन मैं शो करता रहूँगा अलग अलग टॉपिक के लिए, आप घर जा कर के उसका आंसर लिखोगे सेपरेटली। सेकंड क्वेश्चन इसका भी मैंने आपको थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, बट यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, बट यू विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन इनफैक्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन जितने भी है ना, मतलब लास्ट ईयर के अभी जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चन जैसे ये 2000 अभी जो मेंस हुआ उसमें 2022 का है, ये सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज वाले में मैंने इंक्लूड कर दिया है। सो आपको अलग अलग ईयर की रखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन का कंपल्सरी क्वेश्चन चैम्बरलिन मॉडल एक्सेस कैपेसिटी का, कंसेप्ट ऑफ लिक्विड ट्रैप, डिमांड फॉर मनी, डिस्कस द फैक्टर एंडोमेंट, ये इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन आ गया, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ गया। ऑल्दो सेक्शन ए का क्वेश्चन है, बट यू आर फाइंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल, ठीक है। बट क्वेश्चन के अंदर कोई डिफिकल्टी करंट ईयर वाले में नहीं थी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर सम क्वेश्चन वर ट्रिकी, बट 2022 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, इन द सेंस कि वो प्रैक्टिस में टेस्ट पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले कर रखा है। एंड वी फाइंड वन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, वो भी ऑलरेडी क्लास के अंदर कवर, नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे इस क्लास के अंदर। मतलब आप जो क्वेश्चन क्लास होगी उसमें जो नए क्वेश्चन है 2022 में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। एंड दोज वर अपियरिंग फॉर 2023, मतलब जो अगर सिलेबस को कंप्लीट थोड़ा अर्ली करना है, बट विल बी डूइंग दैट। पेपर 1 की आपकी ये क्लास तो इसी ऑर्डर में चलती रहेगी, इसमें अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 90 लेक्चर करीब लग जाएंगे इधर। और पेपर 2 सेकेंड पेपर यानी इंडियन इकॉनमी अराउंड 35 to 40 लेक्चर हो जाएगा, मतलब उसके हाफ टाइम में पेपर 2 हो जाता है। तो पेपर 2 को भी थोड़ा अर्ली स्टार्ट करेंगे, इट इज नॉट सिक्वेंशियल कि वो कंप्लीट पेपर 1 खत्म होगा तब पेपर 2, इन दैट वे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, फिर वो मार्च अप्रैल का मंथ चला जाएगा। तो बिकॉज जनवरी ऑनवर्ड्स आपके लिए फिर ऑप्शनल पे ध्यान देना ज़्यादा, मतलब वी विल नॉट सजेस्ट कि आप उसके बाद फिर ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, योर फोकस शुड बी मोर ऑन प्रीलिम्स आफ्टर दैट। सो ये साइमल्टेनियसली इस क्लास पेपर 2 की भी स्टार्ट हो जाएगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो इन दैट वे यू विल बी एबल टू कवर द एंटायर कोर्स बाई लेट अस से जनवरी, ठीक। ऑल्दो लेट बिगिन किया बट आपको जनवरी तक ये कंप्लीट ओवर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो याद रखिएगा, ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे अपलोड हो रही है, मंडे टू फ्राइडे, मतलब 11:15 तक इफेक्टिवली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज की क्लास एक्सटेंडेड, अदरवाइज 1:30 तक ओवर हो जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास है। दोज हु आर अपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक सर्विस उनके लिए वीक में नंबर ऑफ लेक्चर पे बढ़ जाएंगे, बट वो एडिशनल क्लास होगी आपकी, ठीक है। दैट मीन्स इन एडिशन टू द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेक्चर ऑल देयर विल बी सम स्पेसिफिक टॉपिक, वो आपके लेक्चर अलग हो जाएंगे। तो इन अ वीक इकोनॉमिक सर्विस के कोर्स के अंदर अराउंड 9 to 10 लेक्चर अपलोड होंगे। ऑप्शनल के अंदर आपका अभी अराउंड 5 है। नवंबर ऑनवर्ड्स आपका पेपर 2 की क्लास भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट वगैरह का आपके पास एक्सेस होगा, तो जो ऑफलाइन भी क्लास अटेंड कर रहे हैं याद रखिएगा टेस्ट सीरीज का आप ऑनलाइन एक्सेस ले लीजिएगा। उस एक्सेस के अंदर जो भी जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन वगैरह दिखा रहे हैं
तो वो क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके एक फाइल बना करके सेपरेटली अपने लैपटॉप पे मोबाइल पे रख लीजिए, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग क्लास नोट्स, फॉर एग्जांपल माइक्रो से स्टार्ट किया, तो माइक्रो से जब स्टार्ट किया तो, और माइक्रो में मार्केट स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया, तो आप अपने रजिस्टर में ये डाउनलोड करके प्रिंट करके वहाँ पे स्टेपल करके रख लो। अभी तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, बट जब आप घर में खुद पढ़ोगे तो फिर आपको ढूंढना नहीं है क्वेश्चन, आपके नोटबुक में एक ही जगह क्वेश्चन होगा। तो आप मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ मार्केट लिख रहे हो वहाँ पे स्टेपल कर लिया, वेलफेयर जहाँ स्टार्ट करेंगे वहाँ वेलफेयर का क्वेश्चन लगा दिया, मैक्रो जहाँ कर रहे हैं वहाँ मैक्रो का क्वेश्चन कर दिया, सो दैट यू डोंट हैव टू लुक फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन एक जगह रहेगा, कंटेंट एक जगह रहेगा और नोट्स एक जगह रहेगा। एंड राइट ऑल नोट्स इन अ सेपरेट नोटबुक, माइक्रो सेपरेट, मैक्रो सेपरेट, इंटरनेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर 2, ठीक है। बट ये डाउनलोड करके वहाँ पे रखिए, जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा वैसे करते हैं। अपडेटेड क्वेश्चन है, मतलब अभी तक जो अवेलेबल है वो सारा क्वेश्चन इसमें ऐड कर रखा है, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विथ लेक्चर 2, परफेक्ट कंपटीशन अभी चलेगा, उसके बाद ओलिगोपोली स्टार्ट होगा, ठीक है।